कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों को ऐसा आजकल लगने लगा है इंग्लिश से उसे जोड़ देते हैं, सो दे मिस इंटरप्रिटेट कि इंग्लिश ही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इज बेसिकली कि आप अपने इमोशंस या फीलिंग्स या जो भी आपका थॉट प्रोसेस है आप वो सामने रखो तो सही, क्योंकि आधी दुनिया assumptions पे चल रही है। अरे बुरा लग गया तो, अरे शायद तुम ना बोलो इसीलिए उसको बुरा लग रहा है, तुम बोल के तो देखो। It's not what you say, it's how you say. Effective communication is not just communicating. Effective communication is being truthful yet kind. Is there a practice that person can use to filter their thoughts before it comes to their tongue? Articulation के लिए बहुत ही अच्छा सा टेक्निक है। We live in a country where email भेजने के बाद मैसेज करना पड़ता है, email भेजा चेक कर लेना। That's so true. Accent आपको कहीं नहीं ले जाएगा, क्योंकि जो रियल पब्लिक है ना वो जानती है कि एक्सेंट कब आता है और एक्सेंट कब नहीं आता। We met a foreigner, started asking us about Shiv Bhagwan, and he asked कि यार ये नीला क्यों है? There was a girl. How did she start? You will not believe. What happened? So there was this Rakshas and all devils and demons, and there were these sages, okay, and they wanted this thing. और मैं उसे देख रही हूँ, अच्छा thing. अरे क्या है भाई, आप भले ही 1000 पॉडकास्ट कर लो, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो, आप मुझे मिलो मत बात करो, आई वुड नॉट गो एंड टॉक टू यू। व्हाई? नॉट बिकॉज आई एम एरोगेंट, बिकॉज आई कैन फील दैट यू आर एरोगेंट एंड यू आर नॉट वर्थ माय एनर्जी। Today I have with us a public speaking coach, a communication coach, a ghostwriter, a content creator whose content creation is in a very unique way, and a book reviewer. Well, who is she? She is Miss Anamika Shukla, and you'll love her way of speaking, her wittiness, her sense of humor, which she has not fully portrayed in our podcast today because she wanted to maintain her dignity of not losing everything that she has. That's the real person that I've seen. But professionally, she's amazing. She's awesome. Her brain power is completely at next level. Her communication teaching skills is completely next level. And today's podcast is going to teach you how to write a perfect email, how to be a good communicator, how to be a good public speaker, and nonetheless, how to be good in life. Make sure to watch all the way till the end, and make sure to follow us on Kabir Wani on Instagram, YouTube, Savan, Jio, all the audio platforms, and make sure to share this with your friends and family. See you at the end. Welcome Anamika Shukla to Kabir Wani podcast. थैंक यू। अनामिका शुक्ला में भी हंसना आ रहा है आपका, ऐसा है यू नो अपन हाथ जो कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करने वाले, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात करने वाले, यू नो आई होप दैट आप बाबूराव ना बन जाओ ये पॉडकास्ट के अंदर, और जो तुम्हारा असली चेहरा है जो तुम्हें प्रोफेशनली छुपा के रखा है वो सबको पता चल जाए। नहीं, मैंने सब डीप ब्रेथ्स लिया है तो मेरे अंदर का अन्नू नहीं जागना चाहिए। अनामिका वर्जन, अनामिका अन्नू वुड फ्लिकर, बट ठीक है। तो अच्छा, तुम अनु मलिक की भी एक्टिंग करते हो ऐसे? अनु मींस आई एम अनु। अच्छा, यू आर अनु। नो, आई वाज जस्ट श्योर दैट के बाबूराव के अलावा कुछ और भी एक्टिंग करते हो। बाबूराव के अलावा कुछ नहीं है। Okay, cool. So bringing all the fun part to your center, you are a communication expert and a public speaking expert, yes. right? So यानी तुम stand up comedy करते हो, ऐसा कुछ है? लोग कहते तो हैं कि मेरे में वो सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उसे बहुत विलिंगली कि हाँ भाई है, टैलेंट है तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करो। So as simple as that. As simple as that. Yeah. You know, but I think somehow ये है ना कि stand up comedy आती है जब भी, तो your communication skills are the most important factor when it comes to that, right? Because आप एक स्टैंड अप कॉमेडी बन ही नहीं सकते हो कि अगर आप पंचलाइन ही सही नहीं मार रहे तो क्या घंटा कॉमेडी करोगे, you know? So yes. let's talk about this particular aspect now. Before we get into the fun part, let me ask you, right? What is communication skills and what made you come into communication? Okay, that's a long story, but obviously I would cut it short. So communication skills लोगों को ऐसा आजकल लगने लगा है कि इंग्लिश से उसे जोड़ देते हैं, so they misinterpret कि इंग्लिश ही कम्युनिकेशन है, but communication is basically basic communication. अगर for instance मुझे कबीर से कुछ चाहिए, ओके, जैसे मुझे कबीर को मैंने बोला कि कबीर मेरे बर्थडे पे आप मुझे एक मैकबुक गिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करूंगी ना, शायद मैं अपना रोना चालू कर दूंगी कि यार लैपटॉप खराब हो गया, ये हो गया, अरे पैसे नहीं हो रहे,
just on a fun side, but communication is basically कि आप अपने emotions या feelings या जो भी आपका thought process है आप वो सामने रखो तो सही, क्योंकि आधी दुनिया assumptions पे चल रही है basically। अरे बुरा लग गया तो, अरे ऐसा हो गया तो, अरे शायद तुम ना बोलो इसीलिए उसको बुरा लग रहा है, तुम बोल के तो देखो। So for me communication is just letting your tongue do the talking। आपके थॉट्स को निकालो अंदर से, वो बेचारा बहुत टाइम से डंजन में बैठा हुआ है अंदर, तो उसे बाहर निकलना है। तो इट्स द हैरी पॉटर बेसिकली ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? तो वो कम्युनिकेशन है। और जहां तक मेरे कम्युनिकेशन कोच बनने की बात है तो कोई रिलेशन ही नहीं है। आई वॉज अ जूनियर ब्रांड मैनेजर, मैंने ब्रांड मैनेजमेंट किया हुआ है। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा स्टार्टअप ट्राई किया, जिसे सब लोग करते हैं, सबको अपने स्टार्टअप्स चाहिए होते हैं, बट ऑब्वियसली वो नहीं चला क्योंकि शायद मेरे में वो एक्यूमेंट नहीं था या जो भी रीजंस थे वो नहीं थे। उसके बाद 2020 में जब कोविड आया, सबका बिजनेस क्रैश हो गया, कोविड में मेरा भी डाउन हो गया, लेकिन कोविड वॉज द टाइम व्हेन आई इवॉल्व। तब मैंने सोचा कि थोड़ा, मेरे दोस्त ने मुझे पुश किया कि यार तेरी इंग्लिश अच्छी है, स्टार्ट कर रील बनाना। कंटेंट क्रिएशन क्या होता है मुझे वो वर्ड ही नहीं पता था, मुझे तब तक यूट्यूब पता था। तो वन थिंग लेड टू अनदर, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट। मुझे बहुत जल्दी हाइप मिल गया, फॉलोवर्स में। आई थिंक विद इन 6 months मैंने 100K क्रॉस कर लिया था, राइट? और उसके बाद लोग सेशंस के लिए आने लगे और मैं उनको मना करने लगी। क्यों? मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, कभी सिखाया नहीं है। आप समझो, अगर मैं किसी को सिखाने बैठी हूँ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मेरे मुंह से तो गाली भी तो निकल सकती है ना, पेशेंस चाहिए भाई ट्रेनिंग के लिए। तो वो धीरे धीरे मैंने बिल्डअप किया, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस वॉच किए, फिर मैंने अपने में क्या इम्प्रूवमेंट्स है, जैसे मुझे पेशेंस पे काम करना था, मेरे गुस्से पे काम करना था, वो सारी चीजें मैंने की। धीरे धीरे मैंने 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट करके लिया, एंड उसके बाद देन रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर हर चीज एक के बाद एक आती है। अगर आपकी अपॉर्चुनिटीज आप लेते हो तो वो आपकी डेस्टिनी होती है, एंड जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, इट्स बेसिकली मैनिफेस्टेशन। सो इट्स ऑल द वर्क ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड एफर्ट्स दैट आई हैव बीन हियर इन दिस पोजीशन फॉर 5 years now. So yeah, that's that I think about my communication journey as a coach. As a coach, Yeah. very nice, very nicely put, very nicely articulated, I would say. Shows how well of a communication coach you are here already. Collar नहीं है अभी मेरे पास। I know. Brush the shoulders off. Yes. Okay, so 2 से 3 चीजें इसमें आपने जो बताया, इसके अंदर विल हैव अ कंटेंट अबाउट। सबसे पहला तो आपने बताया कि लोग डरते हैं कम्युनिकेट करने से, बट देन यू हैव टू लेट योर थॉट प्रोसेसेस आउट, राइट? True. Now, to start with, what happens is like बहुत सारे लोगों की थॉट प्रोसेस थड़की होती है या खराब होती है, तो हर चीज से निकाल सकते नहीं है। तो उसको फिल्टर करके कैसे उसको हम मेक श्योर कर सकते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे। जैसे आपने बोला कि अरे मैं बोला, सामने वाले को बुरा लग गया तो, राइट? तो मेरी इसमें एक थॉट प्रोसेस है सबसे पहला, इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से, है ना? तुम सामने वाले को गाली भी दे दो तो वो हंस भी देगा, या सामने वाले को तुम प्यार भी दे दो तो वो बुरा भी लगा देगा। कमिंग टू माई क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन is thinking and then speaking, can they just clearly let it out? So यहाँ पे मुझे एक इंस्टेंस याद आता है भागवत गीता का। वो श्लोक थोड़ा बड़ा है तो मैं उसे मिसप्रोनाउंस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उसका मीनिंग बता दूंगी कि एक पार्ट है जो कम्युनिकेशन के ऊपर स्पेसिफिकली कृष्ण भगवान ने बताई है गीता में, और वो ये है कि आप जब कम्युनिकेट करते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट कम्युनिकेटिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बीइंग ट्रूथफुल येट काइंड. So the purpose is to inspire, okay, and not harm. Inspire, improve and not harm basically. तो कम्युनिकेशन जब आप फिल्टरेशन करते हो ना, तो जैसे रवीना टंडन का एक वीडियो भी बहुत फेमस हुआ था ना कि आई एम टू ऑनेस्ट, शी सेड कि यार लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं बॉलीवुड के, कुछ लोगों को शायद मे भी बोला रहेगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, नॉट स्पेसिफिकली टू बॉलीवुड आई एम टारगेटिंग टू. तो आई एम टू ऑनेस्ट, मैं तो बोल दूंगी यार कभी क्या पहना हुआ है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुझे वो पहनना चाहिए था. नो, दैट्स नॉट बीइंग ऑनेस्ट. ये आपका एटिकेट बताता है, ये आपका कैरेक्टर प्लॉटिंग बताता है, जो आपकी कंडीशनिंग हो रही है बचपन से, या मे बी जिस एनवायरनमेंट में आप पल बढ़ रहे हो. तो काइंडनेस के साथ बोलो. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर ये कलर नहीं सूट कर रहा फॉर इंस्टेंस, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि यार आप क्या पहन लिया है, मैं बोलूंगी कि कबीर यू लुक ग्रेट टुडे, बट आई थिंक व्हाइट आप पे ना और निखर के आता है. ठीक है, बहुत और ज्यादा हैंडसम लगते हो उसमें. तो आपको इस तरह से रहना चाहिए, ट्रूथफुल रहो पर काइंड भी रहो. अब राखी सावंत की तरह भी आपको एकदम नहीं बोलते ना कि मैं ही हूँ, या अभी
कंट्रोवर्सी एक चल रही, कंट्रोवर्सी तो मैं नहीं बोल सकती, बट उर्वशी रावतेरिया के बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, वो तो ठीक है। वो तो जिंदगी भर कंट्रोवर्सी में रहती है. I am so she has this dialogue, I'm all natural, and that's the accent that she uses. Okay, I'm a mountain girl. नहीं पता है लोगों को क्या है. सो कम्युनिकेशन वो होना चाहिए, ठीक है, अगर आपने कुछ करा भी लिया है अपने फेस पे, आपने फिलर्स लगाए, जो भी लगा, एक्सेप्ट इट ना, ठीक है, आपकी वो इंडस्ट्री है, वो डिमांड करती है, तो आई थिंक फिल्टरेशन लगना चाहिए, बट काइंड तरह से लगना चाहिए. आप ज्यादा भी एकदम रोबस्ट मत हो जाओ कि रिजिड हूं मैं. रिजिडिटी भी जो होती है ना, वो आपको बोलते हैं ना कि जो पेड़ होता है, जो खड़ा पेड़ है, वो फ्लड आएगा तो वो गिर जाएगा, जो झुकता है वो फल देता है. as simple as that. So I think That's how I made my point. Great. I really love the fact, the way you have said that. I think when you come for Rakhi Sawant, she's like the best communication expert out there in the world. उसके ऐसा communication कोई नहीं कर सकता दुनिया के अंदर. Yes. But okay, so you know how you said that you have to let you know the filtration है. Can sound, is there a practice that person can use to filter their thoughts before it comes to their tongue? Yes. अभी इसके पहले I'll give you a question that people ask me n number of times. तो वो लोग बोलते हैं, यार अनामिका, आप बोलते हो वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान दो, आप बोलते हो थॉट आर्टिकुलेशन पे ध्यान दो, पिच पे ध्यान दो, ये फलाना ठिकाना, इस पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो, बट अनामिका आप बताओ कि अगर मैं सामने किसी से बात कर रही तो मैं उस पर ध्यान कैसे दूंगी? अच्छा, ये भी फिलर्स नहीं आने चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, टोनैलिटी प्रॉपर होनी चाहिए. नो, दैट्स नॉट द थिंग. द थिंग आई वांट टू कन्वे हियर इज कि आपको ये प्रैक्टिसेस जो है, जो फिल्टरेशन वाला प्रोसेस है, ये आपको प्रैक्टिस करना है. जब आप कंटिन्यूसली इसे प्रैक्टिस करेंगे, आई टेल यू हाउ टू डू दैट. तो जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तभी तो दिमाग उतना स्टेबल बनेगा कि जब एक्चुअल परीक्षा आए आपकी, उस टाइम पे आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हो. सो आर्टिकुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा सा टेक्निक है. आप क्या करते हो ना, जब रोज आप कोई भी टॉपिक लो, या मे बी आपको अपने दूध वाले से बात करना है, राशन वाले से बात करना है, या आप ज्यादा से ज्यादा ले लो, आपको अपने क्लाइंट से ही बात करना है, ठीक है, तो आपके जितने भी थॉट्स है ना, आप वो एक इंस्टेंस लो और वो थॉट्स के पॉइंटर्स बनाओ. जैसे फॉर इंस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है, ये टॉपिक हो गया, या फेमिनिज्म, मैं सबसे ग्रेटेस्ट टॉपिक फेमिनिज्म लेती हूँ, ठीक है, फेमिनिज्म. ओके, तो आपने फेमिनिज्म के पॉइंटर्स बनाए, राइट, 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपको रॉ पॉइंटर्स आते हैं वो बनाओ. द सेकेंड स्टेप इज उसमें से हाइलाइट्स निकालो कि अच्छा, अब मुझे इन रॉ पॉइंटर्स में से मुझे बात किस बारे में करनी है, वो आपने निकाला. द थर्ड स्टेप इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अच्छा, कुछ याद आ रहा है, कुछ और ऐड करना है, या अच्छा जो लिखा है मे बी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से उससे जो कुछ कम करना है, right? And then start to elaborate those points. Now this practice will help you in your impromptu speaking, right? ये सबसे अच्छा थॉट आर्टिकुलेशन का टेक्निक है. या तो फिर आप 5W1H मेथड या फैट मेथड भी यूज कर सकते हो. सो 5W1H मेथड आप समझ ही गए होगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु एंड हाउ. बट फैन मेथड आई विल टेल यू, जो वी हैव फैन हियर. सो फैन मेथड बेसिकली क्या होता है? फीलिंग, एनेक्डोट एंड टाइंग बैक. नाउ व्हाट इज दैट? सो फीलिंग है, फॉर इंस्टेंस आज आपके टीम मेंबर का फेयरवेल है, ओके, अब इसको आर्टिकुलेट कैसे करूँ, समझ ही नहीं आ रहा, इसकी तारीफ करूँ या इसने जो इतना बर्बाद कर चुके हैं मेरे लिए, ठीक है, इतना इतना लायबिलिटी बना दिया भाई, क्या बोलूं. लेकिन ऑब्वियसली हम अच्छा ही बोलते हैं. तो आप पहले फीलिंग बताना कि आपको फील कैसा हो रहा है, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फील रियली, आई फील ट्रूली ग्रेटफुल टू हैव यू इन माय टीम, राइट, वो हो गया. फिर आप एक एनेक्डोट बोलना कि आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे व्हेन यू जॉइंड द ऑफिस, यू वर सो नर्वस, यू वर अंडर कॉन्फिडेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन टाई बैक, विश हर सक्सेस फॉर हर करियर, फॉर अ फ्यूचर. तो ये सारे टेक्निक्स हैं, बट इन टेक्निक्स को लोग सुनते हैं, अरे वाह मजा आ गया, अनामिका बेस्ट, और उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसके बाद आता अनामिका काम ही नहीं कर रहा. भाई फिर मेरी गलती नहीं, मुझे मत टोको. So I think these three techniques work the best. It has worked with me. It took me 7 years to become confident and be very fluent because I didn't have any mentor. As simple as that. Lekin if you have good mentor, if you have a perfect mentor, 3 months is more than enough. You will start to see changes in yourself within 20 days. Wow, okay, with a mentor. Going back again for the questions that I have in my head now. इतना सारा आपने जो बताया, so I've got my keywords. सबसे पहले we'll go back again to the fact where how you said that के you know putting up your thought process to your words, right? अब इसके अंदर है ना, I think maximum amount of people जो fail हो जाते हैं, शायद हो सकता है they can be a
good communicator, great communicator. Hell, they can be one of the best communicator out there. Confidence. You know, झूठ भी बोलो ना तो ऐसा बोलो जैसे सामने वाले को सच लगना चाहिए. That is truly there. So, confidence जो part आता है, you know, how can one develop a factor when, you know, you're talking to a person? You should have that level. So, what kind of tips would you want to give for someone who's great communicator but lacking confidence? And how much that's important when it comes to communication? Important, very crucial. And सबसे पहला तो एक बेसिक टिप है जो मैं सबके देना चाहूंगी कि उस सामने वाले को इंसान समझो. नहीं समझते तो क्या? हाँ, नहीं समझते ना भाई, या तो भगवान ही समझ जाते हैं, ठीक है, तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या तो तुम तुच्छ हो, तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान जीता है. सो डू नॉट कीप एनीवन अबव योर आई लेवल और बिलो योर आई लेवल. बेसिकली दैट्स माय पॉइंट. ऑलवेज कीप देम एट पार. इसीलिए कॉन्फिडेंस का इशू होता है ना. अरे यार मस्त अंग्रेजी बोल रहा है, प्रियंका चोपड़ा के सामने अगर मुझे खड़ा कर दो, ऑनेस्टली बोलो, मुझे भी अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा, बट आई वुड नॉट लेट दैट आउट ऑन माय फेस और इन माय बिहेवियर. दैट्स कंट्रोलिंग. ठीक है. सो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऑब्वियसली प्रैक्टिस, लेकिन एक्सेप्टेंस. लोगों में ना एक्सेप्टेंस ही नहीं है. अगर उसे कुछ चीज नहीं आ रही है, स्पेसिफिक इंसान को एक स्पेसिफिक चीज नहीं आती है, तो उसे ऐसा लगता है यार कैसे बोलूं. हाँ तो ठीक है ना, अगर मुझे फाइनेंस एंड आईटी जीरो समझता है, मुझे कोई भी बुद्धू बना के जा सकता है फाइनेंस एंड आईटी में, बट मैंने अपने लोग रखे हैं क्योंकि कोई मुझे ये करके ना बेवकूफ बना के ना चला जाए. बट आई होल हार्टेडली एक्सेप्ट. एंड मैं ये नहीं बोलूं बिकॉज आई हैव अ सर्टेन बेस तो अब मेरी अथॉरिटी आ गई है बोलने की. मैं शुरू से ये चीज प्रीच करती हूँ. हाँ मुझे फाइनेंस नहीं आता, लेकिन हाउ डू आई से यस मुझे फाइनेंस नहीं आता, डू लेट मी नो हाउ इट गोस. यार मुझे तो फाइनेंस नहीं आता यार, आई एम सो सॉरी. क्यों सॉरी? ईदर लर्न और एक्सेप्ट. दैट्स द थिंग. सो कॉन्फिडेंट होने का सबसे पहला एक्सेप्टेंस जो आपको लीड करता है एक्सीलेंस के लिए. तो आप एक्सेप्ट करो, पब्लिकली एक्सेप्ट करो. आप पब्लिकली एक्सेप्ट करोगे तो क्या होगा, जैसे हम 4-5 लोग बैठे हैं यहाँ पे टीम शूट करने के लिए, और मैं बोलती हूँ आपने मुझे कोई ऐसा सवाल पूछ दिया जो जैसे पॉलिटिक्स का पूछ दिया, मुझे पॉलिटिक्स भी नहीं समझता, तो फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे ये पूछ दिया, अब अगर मैं ऐसी हो जाऊं, मेरा बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो जाए, मुझे पसीने छूटने लगे, नो दैट्स नॉट द पॉइंट. यार कबीर बस क्या यार, पॉलिटिक्स नहीं समझता, लेट्स हॉप ऑन टू अनदर क्वेश्चन. तो आप अच्छे से ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो. अब क्या होगा, आप जब ग्रेसफुली एंड कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करते हैं तो सामने वाला अगर चाह के भी ना आपको डिमीन नहीं कर सकता, और अगर वो डिमीन करता है तो वो इस इंसान की गलती है, वो इस इंसान में प्रॉब्लम है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं. तो आई थिंक एक्सेप्टेंस इज द की. एंड सेकेंडली आई बिलीव प्रैक्टिस इज द की. आप प्रैक्टिस करिए. जैसे हम मैनिफेस्टेशन आप सिखाते हो हैं, आप बहुत अच्छे कोच हो, तो मैनिफेस्टेशन के लिए जो आप बोलते हो कि मिरर में जाके बोलो कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, आई ऑलवेज से दैट आई हैव अ फेयर एंड फ्लॉलेस ग्लोइंग स्किन, आई एम अ बिलियनेयर, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट. It helps. It helps. Okay. So mirror chat helps. Okay. Yes, it actually helps. So I think that's the thing. That's the thing. Great. I really appreciate that. Great answer, by the way. I love that. Thank you. ऐसी थोड़ी कोच बनी हूँ. है ना? I know. दिख रहा है. Okay. So okay, you know, second I want to get into a fact where again I've got all these keywords from your conversation before. You know, कोई लोग है ना, certainly they start having an accent and they have never been anywhere but into the sober world, or you know, I've actually always went into the sober lifestyle. My lifestyle is in such a way that, oh, you think I have an accent? I don't know about that. You know, so how do you deal with that? Because the type of person that I am, right? I catch that very quickly. Same here. Okay, so I have this superpower of catching energies and vibrations. Same here. High five. Right, and as soon as I hear someone, it's not that I've not had. See, I've lived in States for 15 years of my life. Right, मैं तो जब बच्चा था तब गया था, 13 साल का था तब गया था, 28 साल की उम्र में वापस आया था, तो मेरे को नेचुरल एक्सेंट था. मेरा हाई स्कूल कॉलेज वहाँ पे हुआ. Being in India for the last 10 years, my accent has kind of reduced. I would still say that I have that kind of accent, but it's not at a level where it was when I was there.
यार ये भाई साहब एयरपोर्ट पे नहीं गए हुए फिर भी एक्सेंट है उनका, या एयरपोर्ट जाके किसी को ड्रॉप करने गए तो फिर भी एक्सेंट पकड़ लिया, ये चीज का क्या फंडा है भाई? सो इस फंडे पे आने से पहले मेरे साथ जो चीज हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स में ना इंटर्नशिप करती थी, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम मुझे जो एरिया का कारधार जिसे हम कहते हैं संभालने दिया गया था, यार आई वाज वेरी यंग एंड उस टाइम नहीं समझ आती थी कुछ चीज। तो पवई अपना जो है हिरनंदानी, उस तरफ पे हमारा लगा था कि हमें यहाँ पे लोगों को पिच करना है, टू गो टू द कंपनीज। सो आई हैड ऑल द प्रीमियम कंपनीज इन माय हैंड, नाम के लिए प्रीमियम कंपनीज थी, बट मुझे बात करने नहीं आता था ऑनेस्टली। बस कॉन्फिडेंस मेरे में बचपन से बहुत है, वो एक चीज मुझे इनहेरेंटली हेल्प किया है। तो उस टाइम क्या हुआ था, सो वी मेट अ फॉरेनर, आई थिंक वो अमेरिका नहीं वो इंग्लैंड का था, ठीक है। ही हैड कम हियर फॉर सम वर्क और समथिंग विद दैट मैटर, एंड ही स्टार्टेड आस्किंग अस अबाउट शिव भगवान, ठीक है। एंड ही आस्क्ड कि यार ये नीला क्यों है इनका यहाँ पे, व्हाई इज इट ब्लू हियर। देयर वाज अ गर्ल, वो हमारे इंटर्नशिप में ही थी, सोबो थी, ठीक है। उस टाइम तो मुझे सोबो वर्ड भी नहीं पता था, बट मुझे इतना पता था कि भाई झूठी है जो भी है। सो हाउ डिड शी स्टार्ट, यू विल नॉट बिलीव। तो वो बोला जाकर ऐसे, you know what happened, so there was this Rakshas and all devils and demons, and there were these sages, okay, and they wanted this thing, और मैं उसे देख रही हूँ, अच्छा थिंग, क्या थिंग, ठीक है। फिर जो समुद्र मंथन हम जिसे कहते हैं, उसके बाद से जो निकला था वो जहर भगवान जी ने पिया था, राइट। तो उसको वो बताना था, तो we did all that thing with the ocean, you know, and then something came out and she was not able to explain. तो I told her कि, and वो भी उससे बंदे को भी नहीं समझ में आ रहा था, मैंने just give me a moment, I'll tell. तो मैंने उनको सारी चीजें एक्सप्लेन की कि क्या हुआ, कैसे समुद्र मंथन हुआ, फलाना ढिकाना, he got to know, he understood. But she's like, oh, I didn't know, हम इसे ये कहते हैं क्या। मैं बोली जो लेके आया उसका नाम बताना। हाँ, that was the sage. मैं बोला what sage, धन्वंतरी थे वो, ठीक है। तो मैं आपको नुएंसेस की बात नहीं करूँ, ठीक है। आपको अगर कोई स्टोरी नहीं पता है दैट इज ओके, बट शी वाज ट्राइंग टू हैव एन एक्सेंट। फिर जब आप उनका काम देखते थे, आई वाज कंटिन्यूअसली द इंटर्न ऑफ द वीक फॉर 7 weeks स्ट्रेट, राइट। उसको एक भी नहीं मिला। एंड एक्सेंट का क्या होता है, लोगों ने ना ये मिस इंटरप्रेट कर, जैसे इंग्लिश को मिस इंटरप्रेट कर दिया है कम्युनिकेशन से, वैसे एक्सेंट को मिस इंटरप्रेट कर दिया है इंटेलिजेंस से, ठीक है। तो उनको ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, हाय हाउ आर यू अनामिका, नहीं, आई एम नॉट अनामिका, आई एम अनामिका, ऑलराइट, नो इट्स नॉट ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल, मुझे डेमोग्राफिक्स को लेके ना लोगों ने बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना फेटिश है उनको डेमोग्राफिक्स को लेके। हाँ ठीक है, यूके जाएंगे, यूएस जाएंगे, oh how I've been to US, I'm there for a year or two and I did not realize that, oh my god, I don't want to live in India. अरे क्या है भाई। तो accent is basically a misinterpretation of you considering it as a parameter to gauge yourself as an intelligent person in the industry. आपको ऐसे लगता है कि अगर मैं वैसे एक्सेंट में बात करूंगा तो मेरी बात मानी जाएगी, नहीं, लेकिन हम जैसे स्मार्ट लोग भी हैं जो समझते हैं कि तुम बेवकूफ हो, राइट। सो एक्सेंट खाली एक दिखावा है, आई वुड से इट्स जस्ट अ फसाड, नथिंग एल्स। जो भी लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मेरे ट्रेनिंग्स थे, जो एक्सेंट से स्टार्ट किए थे, अब नॉर्मल एक्सेंट पे आ गए हैं, क्योंकि उनको मैंने मिरर दिखा दिया है। एक्सेंट आपको कहीं नहीं ले जाएगा, क्योंकि जो रियल पब्लिक है ना, वो जानती है कि एक्सेंट कब आता है और एक्सेंट कब नहीं आता है। I'll give you one example. There are 3 words, 3 sounds basically in English language, and you must be aware of it, is k, t and p. But अगर आप उसको इंग्लिश में देखोगे, it's not k, t and p, it's k, th and p. So it's not kitchen, table and pen, it's kitchen, table and pen. But ये accent नहीं है, ये pronunciation है। But I want to go. No, I want to. It's not I want to go. Okay. So you need to know the sounds. You need to know the vowel sounds. You need to know the consonant sounds. कैसा है? अभी जैसे मैंने consonants बोला, तो वो ख है, ठीक है। अगर मैं colleague बोलती तो वो colleague है, right? लेकिन अगर मैं champagne बोलना है, champagne नहीं है, वो champagne ही है, राइट। तो बेसिकली लोगों को साउंड्स का नॉलेज नहीं है, उनको ऐसा लगता है हम किसी भी चीज में, हम किसी भी चीज में ऐड कर देंगे तो हम लोग बहुत अच्छा साउंड करेंगे। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया। that's good. I think एक चीज का बहुत, I think ये ना, there's this thing called jalapeno. jalapeno. jalapeno, like पर जे है ना,
हाँ बट भाई वो प्रोनाउंस नहीं होता है, वो हेलोपिनो की तरह से प्रोनाउंस होता है क्योंकि वो उस हिसाब का बना हुआ है। मैं तो जैलोपिनो ही बताऊँ, है ना। जैलोपिनो। फिर मोजितो। हाँ मोजितो। एक समय वो बोले कि आया था ना, बोला कि ये मोहितो देना, बोला ये मोहितो लेकर आना करके। नहीं सर वो मोजितो है। मेरे माइंड में ना बोला अच्छा हमका सिखा रिया है। मेरे वाला जो भी है लेकर आओ। तो अक्षय का चल अपने बाप को मत सिखा। वैसा। एंड आई हैव सीन पीपल। अच्छा मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, देखिए वो उनका पर्सनल चॉइस है, हम एक एक को जाके तो करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, अपने आप को करेक्ट कर लो। तो मैंने लोगों को देखा है कि एक्सेंट मारते यार, प्लस प्लीज अगर तुम्हें एक्सेंट मारना तो तुम ग्रामर सीखो यार। You know what, I didn't know that. अरे it's didn't know, so it's very common. ठीक है कि आप did not के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, that is the thing. तो अगर तुम्हें एक्सेंट मारना है तुम मार लो, तुम्हारा बेइज्जती होगा वो तुम्हारा, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। प्लीज एक टिप देना चाहूंगा, ग्रामर सीख लो यार, ग्रामर सीख लो। हाँ ग्रामर सीख लो, क्योंकि वो कम्युनिकेशन को तुम्हें और एज अ पर्सन भी तुम्हें बहुत खराब कर रहा है। So yeah, that Okay, is that. so basic conclusion here is that के accent से confidence level खाली बढ़ सकता है, intelligence नहीं। हाँ, वो एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूं तो वो लोग सबसे ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और इनसिक्योर होते हैं जो एक्सेंट मारते हैं ना, क्योंकि भेड़ चाल, उन्हें लोगों के बीच में जाना है, इसीलिए वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। दे आर द मोस्ट अंडर कॉन्फिडेंट एंड द मोस्ट इनसिक्योर पीपल। I've seen this in the creator industry also. It's just that I would not take names. Naturally, no, I As completely simple as understand that, that. That happens a lot. Apparently, मेरा accent मेरे दोस्तों ने निकलवा दिया है। You know, मेरा मजाक उड़ा के पर आपका बनता है यार, you were there for 15 years, आपका तो आना बनता है। नहीं, but no, still it's gone. हाँ, it's gone. Major level, like in fact, a scenario happened here that we, few of us creators, we had went to Bhakti's birthday, right? And so they're like, "Acha, you were there in 15 years, huh?" So I'm like, "How come we don't have an accent?" I'm like, "See, it's there. So when you see me speak to my friends in States, so naturally, I think because my mindset and maybe they're speaking in that way, so it naturally comes. And whenever I have a thought process of States, so sometimes you'll see a switch in my way of speaking. You know, it comes because who I'm speaking to matters. Now, even with you, I think what will happen is that my way of speaking will be much more higher and professional, and I know that she'll understand what I'm saying. So you may feel there's an accent coming into my head. Abhi recently क्या हुआ था? There's a place called Sbarro. So they're like, you people sent me the picture. हाँ, right? So Yes. उससे बोली नहीं पर इसका ना accent आता है कभी कभी. So this was Shruti was there ना, तो उसकी बहन को मिलाई, बोली पर तुम्हें तो accent नहीं मिला। हाँ पर 10 साल हो गए ना अभी मुझे, तो मैं अभी इंडियन लोगों का, मैं like I'm a very adaptable person, so I adapted very quickly. So बोले हाँ बट उसका ना आया था अपन कौन सा, so she asked me कौन सा पिज्जा का, मैं Sbarro। तो दिखाया उसे Sbarro। बोले ये परफेक्टली पता है Sbarro। हाँ बोले हम बोले Sbarro बोलते हैं यहाँ पे, उसे Sbarro। so बोले हाँ, तो उससे ना मेरे को, और ये मुझे ध्यान ही नहीं है, मेरे एक्सेंट की टेस्ट हुई जा रही है। बोले कौन सा पिज्जा है, मैं Sbarro। अच्छा देख नहीं, बट यू हैव दैट फ्लेयर। ये मुझे जब हम लोग मिले थे जहाँ पे फर्स्ट टाइम, तो वहां पे जब बात कर रहे थे ना, देखो यार कितना भी हो, भले ही मैं अपना प्रोफेशन आपको नहीं बता रही हूँ, कुछ नहीं आ रही हूँ, बट मेरे अंदर का जो ट्रेनर है वो तो जगह रहता है ना, सबकॉन्शियसली इट इज देयर। अगर ठीक है, आई एम जजिंग पीपल बट नॉट जजिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बट मुझे पता है कि हाँ कौन कैसा बात कर रहा है, किसको किस चीज की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अगर कोई पूछे तो वेरी गुड। तो वो आई गॉट टू नो फ्रॉम योर फ्लेयर कि ये या तो इसकी इंग्लिश एक्चुअली बहुत अच्छी, क्योंकि जो लोग जैसे फॉर इंस्टेंस माय आंट, ठीक है, when she speaks she has a US accent but she doesn't fake। उनका है क्योंकि वो बहुत छोटे से हॉलीवुड मूवीज देखते आई हैं, बुक्स उस तरह के पढ़ते आई हैं, उनके क्लाइंट्स HNI थे, ठीक है, तो उस तरह से उनका एक्सेंट वैसा ही बन गया, तो लोगों को ऐसा लगता है वो फेक कर रही, बट शी डजंट फेक। एंड पीपल whosoever is watching this podcast, the viewers, कबीर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जिसको हम बोल सकते हैं कि अडेप्टेबिलिटी डेमोग्राफिक्स के हिसाब से हमें कैसी करनी चाहिए, कि वहां थे तो वैसे हो गया, लेकिन यहाँ आते आते हम ढल जाते हैं, लेकिन लोग तो एयरपोर्ट पहुंच के ही एक्सेंट मारने लगते हैं। I've seen this legit, I would not say, I would not take names, नहीं तो घर वाले relatives मुझे आके बहुत कोसेंगे, but I've seen this with one of my relatives that she भी नहीं बोलूंगी, ठीक है, कि वो इंसान पहले हिंदी में बात कर रहा था, उसके बाद वो इंसान एक जगह घुसा जहाँ पे जाना था, रेस्टोरेंट, होटल, जो भी, अचानक से हिंदी से जो इंग्लिश एक्सेंट, इंग्लिश में नहीं, जो स्विच हुआ है ना, वो जो अपना मीम है ना अभी कैट का चल रहा है ऐसे ऐसे देखने का, मेरी शक्ल एकदम वैसी थी,
क्योंकि मैं कभी भी इंग्लिश में बातें नहीं करती बाहर जाके, unless and until required. I love talking in Hindi. यहाँ पे भी आप मेरे को मेजर हिंदी में ही बात करते हुए सुनोगे. But yes, what I would suggest is जरूरत है ना जहाँ पे इंग्लिश की, प्लीज अडेप्ट करिए और बात करिए. लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है ना, सब्जी वाले भैया से, वेंडर से, मैंने लोगों को देखा है, ऑटो वाले से, या जो आपसे कम है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, ओनली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, अगर आपको दिख रहा है वो इंसान फंबल कर रहा है, प्लीज बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, टोन डाउन, आप हिंदी पे आ जाओ. उसको एम्बैरेस फील मत कराओ, क्योंकि आपको नहीं पता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, वो ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट है और आप उसको और दबा रहे हो. तो कम्युनिकेशन खाली ना अपने थॉट्स को कन्वे करना नहीं है, बट एम्पथाइज भी करना है. सो माय यूएसपी इज एम्पैथी इन कम्युनिकेशन. दैट्स व्हाट आई ट्रेन पीपल फॉर. सो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप अगर अच्छे इंग्लिश नहीं बोल सकते मुझे चलेगा, बट अगर आप एक एम्पैथ नहीं हो ना इन कम्युनिकेशन, देन वो नहीं चलेगा. कहीं ना कहीं योर कर्मा विल कम एंड टेल यू कि अब भाई तो नीचे आ जा. Great. Loved the conversation. That was one of my favorite topics that I spoke about. I know how to trigger people. Very nice. No, that came naturally. The trigger only comes from Kabir here. Yeah. Okay, it's Kabir Wani podcast. घमंडी आदमी. हाँ बोलो रे, just kidding. बलूनी गवंडी. पैदा ही गवंडी हुआ था मैं. But no, I loved it. I really did love it because of the factor that कि ये चीज मैं personally go through कर चुका हूँ, and I think we kind of resonate at that level that I could have spoken to you easily on that factor. That's why we are friends. And of course, getting to accent again, right? There are two different type of accents in the world, right? Then one which is a British accent. There's one which is American accent. You know, they say that British accent is the real genuine and professionalism accent where you're very empathetic to people, you're using full words, and you're not just using slangs that usually Americans do, and you don't really understand what they're saying. You realize what I did there? I am getting the words, I'm getting the metaphors, everything. Yes, so I'm getting the accent also. I spoke exactly how a British person speaks and how the American speaks, right? So now coming to the factor where which one is considered in when it comes to the workplace, corporate world? I'll tell you, there is although a very major difference when it comes to British English and American English, is that and there's one more, which is Australian. And I was like, because they have come up with all kind of acronyms, which is not even fully there. If you go into McDee's, you're not even going to McDonald's. You know? So all of those things come across to it. I've tried Australian now, but my cousins are Australians. If they're watching that, you know, I know that they're faking the accent. Although they're born there, it's okay. But you know, Kabir ko अभी वीडियो कॉल या कुछ तो आएगा. वो जैसे ये वीडियो रिलीज होगा ना, I'm sure she's gonna like. So one of my cousins there, so she knows. So apparently she thinks she's my favorite cousin, but the truth is something else. But नहीं बोलना भाई इतना ऊपर podcast में have to be so explicitly, true. So, right. So there are several kind of accents, right? So, but I know like the most powering accents are these two, American or British. Yeah. When it comes to the workplace communication, like especially, and because we are in India, we're going to talk about Indian culture here, because we've been ruled by British for so long. You think when it comes to using a different, like if you're very fast or if you're very slow, how much does that affect when you're having a communication with, when it comes to your superiors? As in, you're talking about the speed? Superiors, Okay. Speed, like the speed wise, you know, so which would matter more? Like if you're going to speak faster or if you're going to be calm and speak slower, how does that work? Obviously the latter. So basically, when I train people on the speed part, speed, pitch, emphasis, voice modulation, okay? Hi, I am Anamika. Hi, I am Anamika. Hi, I am Anamika. When we talk about these variations, so speed should not be fast, nor it should be slow. It should be a mixture of both. Now, speed, people think, depends on who we are talking to. जैसे अगर we are talking to our seniors, CEO हो गए, managers हो गए, VPs हो गए, तो वहाँ धीरे बात करना. अगर हमसे lower level पे हैं प्रोफाइल में, तो उनसे तेज बात करना है, जल्दी बात करना है, या मे बी कभी-कभी बात ही नहीं करना है. ठीक है? But speed should be a combination of both. I'll give you one example. When we are excited, when we are happy, or when we are in hurry, when there's something urgent, यार एक फोन का देना, एक अर्जेंट कॉल करना है, फिर यार फोन दे यार, अर्जेंट कॉल करना है, राइट?
this would be the speed. And I'm sad. अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार आजकल, बिल्कुल अच्छा नहीं, क्या बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार आजकल. The speed would be slow. So it's not the speed that matters, it's the mixture, how well you mix it up, you blend it up. ठीक है, तो अगर मैं एक स्पीच, अगर आप जैसे हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, स्टार्टेड स्लो, ओके, बट जहां जहां जरूरत पड़ी, जैसे हंसी मजाक की कोई बात आ गई, वहां तो हम तेज हो गए ना, हम दोनों तेज हो गए, ठीक है. लेकिन अब जब मैं समझा रही हूँ, तो मैं कैसे समझा रही हूँ, मैं स्लोली समझा रही हूँ, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट, राइट. सो देयर इज नो लो और हाई स्पीड, सॉरी, नो हाई और स्लो स्पीड, वैसे कुछ नहीं होता है. आपको हमेशा ब्लेंड करना होता है, आपको टोनालिटी भी उसके साथ मैच करनी होती है. जैसे मैंने बताया, अगर मैं दोस्त यार आप लोगों के साथ कैजुअली जब बात कर, हाँ यार कैसा है यार, ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएंगे. मैं ट्रेनीज को ट्रेन करती हूँ वन ऑन वन, हाय हाउ आर यू, बट जब मैं आई एम ऑन स्टेज, आई नो देयर आर पीपल सिटिंग एंड दे आर वेल राउंडेड पीपल. एट दैट पॉइंट इन टाइम, हाय वेरी गुड इवनिंग, आई एम अनामिका, आप आवाज देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं बात कर रही हूँ. तो आपको, it's not only the speed, it's everything that you have to consider. Then you will understand the emphasis is also important, right? So either you emphasize on words, I didn't do it, I didn't do it, सबका combination होता है. So communication में कोई एक चीज नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि ये बोल दो तो सही हो जाएगा. आपका जो proper मिश्रण होता है ना, जब हम सब्जियां बनाते हैं, तेल डालते हैं, जीरा, राई, हींग, जो भी डालना है डालते हैं, तो एक ही चीज थोड़ी ना डालते हैं. हर चीज का मिक्स करके जब हम बनाते हैं, तब एक प्यारी सी सब्जी आती है, टेस्टी सी सब्जियां, डिश बनता है. So that is basically communication. That's how you communicate. Very, very beautifully explained. I love the fact, right? So when it comes to your, in the corporate workspace, when it comes to communication, right? Like you had said earlier, that there are two kind of things that happens, where if you don't communicate, you're going to lose out on your promotions. Yes, true. You're going to be undermined. Yes. Or you're going to be ruled out completely. True. Like तुम सबका काम करते बैठोगे, तुमको कभी कुछ मिलेगा नहीं. बात तो सही है. So when somebody wants to communicate in terms of asking for a promotion, what could be the best way for them to approach? I think पहला जो सबसे अच्छा चीज है, I think basically your relationship should be very good with the HR, with the team, okay? तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए उनके साथ. बहुत अच्छा नहीं भी है तो प्लीज खराब मत रखो. डू नॉट डीमीन इट, डिग्रेड इट, ये चलना तू HR होगा, अपने घर का मेरा नहीं फर्क पड़ता. नहीं, ऐसे नहीं करना है भाई, क्योंकि उसी के हाथ में पूरी कारदार है आपकी, राइट? ठीक है. सो फर्स्ट, इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, योर रिलेशनशिप शुड बी गुड, फैंटास्टिक. इफ इट इज नाइस, इफ इट इज इवन एवरेज, उसके बाद आई बिलीव you have to use the sandwich method that we use in our feedback. जब हम किसी को फीडबैक देते हैं, तो उस टाइम हम सैंडविच मेथड यूज करते हैं. सो अगर हमें प्रमोशन के लिए भी पूछना है, तो ऑब्वियसली आपके कुछ लाइंस, अगर रिटन कम्युनिकेशन, आप रिटन की बात कर रहे हो या स्पोकन की बात कर रहे हो? नहीं, let's talk about spoken right. ठीक है. सो स्पोकन की अगर बात करते हैं, तो हम पहले परमिशन लेंगे कि जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे आपसे बात करनी है. सो लाइक, हाय कबीर, गुड इवनिंग, could I have 5 or 10 minutes of yours? I have something important to share. Share. Words are really important. I have something to talk about next. I have something to share. So जब आप share बोलोगे ना, when you use these words, when you use impactful words, at that point in time, people consider it as a primary thing to get accepted. Right? वो accept करेंगे. चले, भले आपको promotion हुआ ना हुआ, but at least they will hear you out. Right? फिर उसके बाद you will actually try to talk them into कि what are the things that you have done, but not bragging it. अब ऐसा नहीं सी मैंने ये कर दिया था, ये साल मेरे कारण इतना हुआ. So I believe our company is doing great. We have done this, we have done that, and considering everything, I believe is there any chance that we could work upon the promotion part, or maybe I could owe some more responsibilities on myself and ट्राई आउट थिंग्स. मतलब आप अपने पे ले लो कि मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में अच्छा लगेगा. ये मत बोलना कि मैं ये प्रमोशन डिजर्व करता हूँ. तो आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं. मैं आपको ये भी बता दूं कि these all things I have not learned from any YouTube channel, from any Google space or anyone for that matter. ये मेरे खुद के आग लगने के बाद जो चीजें हुई हैं. Alright, yeah, these are personal experiences. मुझे बहुत लथड़ पड़ी है अपने स्टार्टिंग करियर में, बिकॉज आई वॉज बदतमीज. आई डिडंट नो हाउ टू टॉक टू पीपल.
I was very egoistic. बहुत ego था मेरा. I was literally cynic. I used to consider it ठीक है, वैसे ही I am the best. अभी I am the best is my manifestation. तभी I am the best was my ego. ठीक The है? difference. Yeah, the difference. ठीक है, तो आप उनको बताइए कि हमने इतना अच्छा कर लिया है, we have achieved this, we have have great statistics last year, yeah, in this coming year also, we have been planning to do a lot of things, and I think I am a bit capable now, or maybe I am ready. Ready is also a very good word, to take more responsibilities and help our company out, or strive for my company. I think that would be more impactful rather than you telling them, bragging them कि देख ले भाई इतना तो कर दिया मैंने, ठीक है भाई अब तो तुम प्रमोशन नहीं दे रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, मेरी हालत इतनी पतली हो चुकी है कि आंसू पी पी के काम चला रहा हूँ मैं. ठीक है, so that shouldn't be the case. I hope you get it what I'm trying to convey. Yeah, so that's the thing. आपको word play करना है. Okay. और उसके लिए आपको हाई वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है, बट इम्पैक्टफुल वोकैबुलरी की जरूरत है. That's the intensifiers, basically. Yeah. And it's again, it's not what you say. It's how you say it. That's it. Makes a difference. So that's chalo, okay. That comes to the way you ask a promotion, right? Yeah. How do you get into a difficult conversation at workplace? Usually, this is a very big of a task when it comes to corporates, right? Yes. People who have 10, 50, 100 employees, and हो सकता है बहुत तो companies इतनी बड़ी होती है, एक team के अंदर ही 10 लोग होते हैं. हाँ. So when you come, and there's impossible that हमारा सबके साथ जमेगा, वो possible ही नहीं है. That's So the how limit. do you, when you come into a space where a person A and person B are having a conflict, and there is going to be a difficult decision or difficult discussion, how do you make sure that you are not showing your anger? हाँ. क्योंकि हमें ना हमारा जो सबटाइटल फेस पे, मेरा तो यही है, मेरा ना फेस पे दिखने लगता है. Same here. तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि when I'm having a conversation, especially when it comes to podcasts, right? So I think Bhakti will agree, many times what will happen is सामने वाला फेंक रहा रहेगा ना, तो मेरे फेस पे एक आता है लुक जिससे मैं अभी बहुत सार्कास्टिक जवाब देने वाला हूँ या सार्काज्म पे आने वाला हूँ. तो यूजुअली मैं सार्कास्टिक हूँ नहीं, बट जब आता है तो बहुत गंदा वाला आता है. So then she'll come and she'll like, sure, calm down. So then I have to understand, okay, I was about to become sarcastic, and that's a natural tendency. ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं ना, उठ के थप्पड़ भी मार सकते हैं. So I was getting into that, right? So difficult conversations. How do one manage difficult conversation in a group and make sure that you don't make a fool out of yourself? So the first thing that we need to understand and remember is there's no personal connection or personal attacks that are happening. These are creative conflicts that we say, obviously. Okay? So you may have some other perspectives about something. I might have other perspectives about a certain topic, right? But we are a team still. Okay? So, for instance, we'll take BJP and Congress. Okay? You might be in one party, from one party, you support one party, I'll support another party, but we are good friends. So that shouldn't affect. Same goes with the corporate communication, same goes with your team as well. So, at that point in time, I believe your agenda should be very clear. My agenda is, हमें revenue double करनी है. Now, agenda के बाद is your problem. See, oh God, how could I forget this? So there's this one very good method of corporate that we teach is SCQA. Okay. Okay, can you guess what would be? SCQA. Situation. Okay. Complication. Question. Answer. Okay. Situation. अभी हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, सेल्स डबल हो गए हैं, हमारी सोशल मीडिया भी बूम कर रहा है, एवरीथिंग फलाना टिकाना, मैं इससे ज्यादा प्रोफेशनल टर्म्स नहीं यूज कर सकती. कॉम्प्लिकेशन ये आ रहा है कि टीम मैनेज नहीं हो पा रही है, हमारे पास टीम मेंबर्स कम है, मे बी हमारे पास वीडियो एडिटर्स कम है, तो जितना जल्दी डिलीवर करना चाहिए उतने इम्पैक्टफुली तो नहीं, उतने टाइम पे हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, कर रहे हैं but time पे नहीं कर पाए. Time management issues are. That's a complication. Third is a question. Okay, tell us, what can we do? Ask everyone. The main thing is you should include everyone from your team. Ask them. Some people would be shy. Some people would be underconfident to keep their opinion on the table right out there. But you as a leader, or maybe as a team member for that matter, have to take that initiative and tell them कि यार बोल ना भाई, भले आपको पता है आपके दिमाग में करोगे तो आप आपके मन का, बट वो शो नहीं करना एटलीस्ट. ठीक है, टेक ओपिनियंस, क्योंकि क्या होता है, पीपल फील हर्ड
When people feel heard, there's a great communication flow that happens. Smooth communication, you deliver best, right? And the last one is answer. तो अगर कोई ओपिनियन दे रहा है, कुछ अच्छा लग गया उठा लो, या आपके पास कोई बेस्ट आंसर है, so that's the answer. So SCQA method is specially designed for corporates, for team members. Very nice. ये जो hierarchy है, situation, complication, question and answer, it works best. मुझे इससे ज़्यादा explain करने की जरूरत नहीं है. But yes, do not keep your personal grudges. हाँ, इसने तो मेरी last time lipstick ले ली थी, मैट की थी 1,500-2,000 की, दी नहीं वापस, चोर कहीं यार नहीं कर सकते चोरी. ठीक है, कर ली भाई, चोरी कर ली, उसे तुम अकेले में धोप दो कोने में मिलके कहीं, बट टीम पे उसे अपने काम पे मत अफेक्ट होने दो. क्योंकि देखिए, हम लोग बोलते हैं, वी ऑल से दैट यू नो प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ शुड बी डिफरेंट. नहीं होता है, अफेक्ट करता है. So always try to maintain a boundary. People forget to maintain their The healthy boundaries. boundaries. Yeah. And that's why that's the major thing that leads to team conflicts. Yes, obviously आपके technical issues भी होते होंगे, जो आप उस लेवल पे भी conflict होता होगा, but आपका personal level पे conflict हो जाता है कि यार मैं इस बंदे को डेट कर रही थी, साथ में ये भी उस पे चांस मारी है, तो वो आ जाता है ग्रज. पीपल, आई एम वेरी वेरी कूल एंड काम. ठीक है, यूज दीज एग्जांपल्स ओनली बिकॉज नॉर्मल लोगों को वही सब लैंग्वेज समझ में आता है, राइट? तो वो ग्रज ना टीम पे मत निकालो. मे बी ठीक है उसने आपका बॉयफ्रेंड छीन लिया, लेकिन शायद वो काम में बहुत अच्छी है, राइट? तो यूज हर एज अ रिसोर्स, बिकॉज यू पीपल आर ओनली द रिसोर्स फॉर अ कंपनी. यू आर नॉट पीपल. अंडरस्टैंड दैट. आपके आउटपुट जब तक निकलेंगे आप रहोगे, नहीं निकलेंगे आपको उठा के फेंक दिया जाएगा बाहर. सो अंडरस्टैंड दैट टीम में भी आपको एम्पैथी रखना जरूरी है, और अपने आप को कंट्रोल माइंड. जितना हम जो सबसे फेमस जो प्रोवर्ब है कि इंग्लिश में बोलते हैं ना, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइस, राइट? तो वही है. अब इसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, क्या कर नहीं अंडरस्टैंड. तो उस तरह से आपको टीम को मैनेज करना. एंड हाउ यू सेड लाइक SCQA sounds like सुन सबकी कर अपनी. Very nice. Sounded like that. कि this is exactly सुन सबकी कर अपनी. That's a hidden motive. But you never know कि maybe for instance भक्ति में भी शायद ज्यादा बात नहीं करती होगी, लेकिन she is brilliant with her things, right? तो उसको शायद वो बोल नहीं पा रही है कि मेरे को ये अपना ओपिनियन रखना है. भक्ति, don't give me tough looks, just an example. ठीक है? ये सारी चीजें completely opposite of भक्ति है, but okay. नहीं, तो मैं just instance दे रही हूँ कि मे बी वो बहुत अच्छी होगी अपने काम में, लेकिन शायद वो उसे उतनी तरह से टेबल पे अपने ओपिनियंस को आपके सामने नहीं बोल पा रही है. वो दबा रही है कि यार अच्छा लगेगा नहीं लगेगा. तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट टेक दोज इंफॉर्मेशन एंड अ टैलेंट आउट ऑफ हर एंड लेट हर फील गुड अबाउट हरसेल्फ. आप लोगों को अच्छा फील कराओ, वो डबल काम करे. मेरे पास आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ ब्यूटीफुल स्मूथ कम्युनिकेशन इन माय लाइफ इज सो माय ट्रेनीज लव मी एंड इवन आई लव देम. एंड मेरे ट्रेनीज, फॉर्चुनेटली भगवान ने ऐसे ट्रेनी देके सब रईस ज्यादा हैं मेजरली, ठीक है? बट द थिंग इज कम्युनिकेशन की इशू उनको भी आ रही है. नाउ आई ऑलवेज टेल माय ट्रेनीज, एनीवन फॉर दैट मैटर, यू ओनली पे मी फॉर द सेशंस दैट आई कंडक्ट. फॉर एग्जांपल 10 सेशंस मैंने कंडक्ट किया, आप मुझे 10 सेशन के 10 घंटे के पैसे दो. बट आई कम विद अ लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन. मेरे 3-3, 4-4 साल पुराने ट्रेनीज अब तक कुछ ईमेल्स लिखना होता है, कुछ मुझसे ड्राफ्ट करवाते हैं या चेक करवाते हैं, उसका चार्ज थोड़ी लेती हूँ. And they became so happy. I actually get multiple gifts from my trainees. मैं ये नहीं बोलूंगी क्या रहने तो अच्छा लगता है यार, गिफ्ट्स किसको नहीं पसंद है, बट they give me gifts that I always wanted. ठीक है? तो आप लोगों के साथ अच्छा करोगे ना, तो आपको जैसे स्नेह देसाई जो बोलते हैं कि नेचर नेवर गिव्स, it gives you back. It gives you back. Nature never takes. It gives you back. ठीक है? तो वो आपका कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको दे रहा है. It is giving you back. It's not giving you, it's just giving you back. Right? तो ये सेम आपका इंसानों को इंसानों की तरह रखिए. उसको लुई विटॉन और आपका चार्ल्स एंड कीथ और जो भी फलाना ढमकाना बड़े ब्रांड्स है, उसके ऊपर आप उन्हें मत गेज करो. ठीक है? And this I'm so sorry I did not let you talk. बट एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो ये कम्युनिकेशन के ऊपर हुआ था. was that so I have a knack for perfumes. I have all the premium brands perfume.
Literally from Burberry to Armani to anything for that matter, you name it, I have it. So you and Bhakti will get along just fine. Yes. भक्ति दे दो अपना, बता दो wardrobe कहाँ है, चोरी भी हो सकती है. एक्चुअली मैं वो जहाँ पे भी जाएगी ना, वो मैं बोला कि खबरदार तूने अगर वो परफ्यूम के सेक्शन में कदम भी रखी है, उसका जमा पड़ा है. We have this knack, ठीक है? I have this knack of collecting perfumes, लेकिन मुझे अच्छे वाले चाहिए, मैं डायरेक्टली नहीं ले सकती, ठीक है? गरीब वाली सोच ही नहीं है ना. तो अरे बहुत अमीर हूँ मैं. मैनिफेस्टेशन चल रहा है पीपल अगेन. तो वो परफ्यूम्स, तो क्या हुआ था, मैं किसी के साथ बाहर गई थी एंड वो फ्रेंड, she's not rich I would say, but she pretends to be one, that मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. She's no longer my friend now, तो because of these reasons. तो क्या हुआ था कि मेरे बैग में Burberry का परफ्यूम था, मुझे लगाना था. अब ऐसे रख के सबको दिखा के तो नहीं लगाऊंगी ना. हाँ, तो मैंने क्या किया, अब जाना था फंक्शन में, तो वॉशरूम में गए अपना टचअप करने के लिए, तो मैंने अपना परफ्यूम निकाला, हल्के से लगा, दिख भी नहीं रहा था, शायद Burberry पे मेरा हाथ था, बट उसकी नजर पड़ गई, तेरे पास Burberry है. I didn't know you could afford that. ये मत बोलो यार. करीबा वाली फीलिंग आ रही है यार कबीर, ठीक है? Like, oh God, listen to me. So it's a communication hack. Okay, so you know what did she do? तेरे पास Burberry है, तो और मैं ऐसे कर रही हूँ ना कि जैसे मुझसे कोई चोरी, हाँ है, अच्छा लगता है मुझे परफ्यूम. तो मुझे सर मतलब घबराहट से, अचानक से ना, मुझे आदत नहीं है कि कोई मुझे ऐसे ऑफ गार्ड पकड़ ले, और मेरे से कोई चोरी नहीं किया है. मुझे ओ माय गॉड, तो दिखाती क्यों नहीं है लोगों को, यू शुड पुट अप अ स्टोरी एंड ऑल. एंड जब मैंने 16 Pro Max भी खरीदा था एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो उस टाइम भी मुझे बोला गया था, मेरी ना आदत है मैं फोन अंदर रखती हूँ, ठीक है, सारी चीजें सब अंदर, नॉट बिकॉज कि मैं बहुत ज्यादा हम्बल हूँ, मैं हूँ हम्बल, जैसे चीजें टूटती घूमती बहुत है, ठीक है, तो मैं अंदर रख दिया. चलो एक फ्रेंड लाइक, अरे तुझे दिखाना चाहिए, कवर क्यों लगा के रखा है, वो ट्रांसपेरेंट कवर लगा के एप्पल का दिखे. मैं बोली जिसको समझ जाएगा कैमरे से ही, ठीक है. ड्रॉप दिस एटीट्यूड, बिकॉज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को इम्प्रेस कर रहे हो, दैट यू नो अबाउट ब्रांड्स. यू नो अबाउट ब्रांड्स, वेरी गुड, यू शुड नो अबाउट ब्रांड्स, बट डू नॉट लेबल एनीवन फ्रॉम दैट ब्रांड. जैसे आजकल क्रिएटर इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन is only and only based on the number of your subscribers, YouTube subscribers, your number of followers, and that's that. I do not care. I'm the best. ठीक है, आप भले ही 1000 पॉडकास्ट कर लो, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो, आप मुझे मिलो, मत बात करो, I would not go and talk to you. Why? Not because I'm arrogant, because I can feel that you are arrogant and you are not worth my energy. That's also one of my communication styles, and people should opt. आप अगर पूंछ हिलाते हुए फिरोगे ना, तो आप वही बन के बंदर बन के रह जाओगे. आप किंग नहीं बन पाओगे, सुग्रीव नहीं बन पाओगे, हनुमान नहीं बन पाओगे. As simple as that. Very, very beautifully said. And I really love the fact that how wonderfully examples that you have given with your real life experiences. मेरा question है ना, एक ये है, तो मेरे questions भी actually somehow real life experience वाले ही आ रहे हैं, right? हाँ, good. Now, if you have to tell someone, let's say you are a leader. हाँ. Okay, and you have to, and then you manage many groups. Okay. This is a networking organization. I'm not going to take name. Oh my God, I know. Right. So what has happened recently? One of the groups were not performing. Acha. Okay, so the leaders had to come and tell them that, you guys are not performing, and because of the members are dropping down, you guys are not able to do business together. Okay. So basically they came and they were supposed to tell us that कि भाई group बंद हो रहा है ना? तो उन लोग they came and they basically said it in a way. They thought they were being kind, they were being calm, but they literally came to us and they told us that, oh, I'm sorry, but you're screwed. Oh God. Okay, so of course he didn't say it this way naturally, but I think his purpose was that, and his choice of words were wrong. No, his purpose was clear. I know the person. His purpose was very clean. Okay, but I think the way he communicated kind of backfired, because number one, he wasn't clear about. Of course, see, this organization is something which you pay money as an entrepreneur and you go. Okay, and you become a part of that group and you do business with other entrepreneurs. This is the whole culture of the group. At the end of the day, of course, उन लोगों को उनका भी देखना है, because it's this group that is there, this organization, they make money as well, right?
तो of course उनको उनका भी देखना है. हाँ. Now there were hardly 10-14 people left in this group. So just kind of they were not able to do business together. They were not able to do certain things together. हाँ. When they came, they were unclear हाँ. of what they wanted to talk about. So they gave us few options, right? Now, what is the best way when a situation like this occurs, where a leader has to come to speak to other leaders and explain them? Other leaders. Other leader, because these are all leaders as well. No? Okay. Because these are not employees. Okay. Because these are all entrepreneurs. Okay. So a leader is coming to speak to other leaders. But they are in a team. But they're in a team. Okay. So you got my point. What I'm talking about. So I'll ask this question again. If a leader comes and speak to other leaders to let them know technically they are screwed, but they have options. How can he communicate this in a very positive way? So first of all, leveraging the fact that everyone is a leader, he must communicate that. तो जैसे वो बोल सकते हैं कि so leaders literally start with that. So leaders and then आपको जो भी बोलना है बहुत एक subtle way में बोलो. So for instance, अगर आपको बोलना you're screwed. So okay, we have a brain to pick. अब कौन सा ब्रेन, किसका ब्रेन, लोगों को लगेगा तो अ ब्रेन बोलेंगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाएगा और वो किसी को ना हैम्पर नहीं करेगा. पर्सनली इट वुड नॉट अटैक एनीवन इन द टीम क्योंकि सब लीडर्स हैं. फिर उनको बताइए, उनको ये मत बताइए कि लीडर्स क्या करते हैं, उनको ये बताइए कि सी वी हैव दिस लेवरेज, हमारी अथॉरिटी है एंड अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी एंड द पोजीशन दैट वी होल्ड एंड द प्रोफाइल दैट वी होल्ड, ठीक है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो ये हमने पूरी नहीं की. ओके, आई थिंक वी ऑल फेल्ड. यू फेल्ड? नो, वी ऑल फेल्ड एज अ टीम. Yeah, maybe we need to work on our improvements. Failure is not the word basically I tell people areas of improvement. So when someone says that this is my weakness, no, that's not your weakness, that's your area of improvement. तो वो उस तरह के words को use कर सकते हैं. And अगर options है, but do not worry guys. Okay, आपको disheartened नहीं होना है. We cannot afford to get disheartened. यार, we are the best. It's okay. Things come, things go. That's okay. So we have these options. Let's leverage out. इतना ही बोलना. इट्स वेरी सिंपल. लेकिन इंसान क्या करता है जिससे कम्युनिकेशन खराब हो जाती है कि आप डायरेक्टली उनको बताते हो कि भाई यू स्टैंड एज एन अथॉरिटी. सो दिल धड़कने दो में व्हेन फरहान अख्तर सेज टू राहुल कि मतलब सनी सेज टू मानव बेसिकली कि तुमने अलाउ किया उसको, मतलब आयशा को, और आयशा को तुम्हारी परमिशन की क्यों जरूरत पड़ी. तो बोलता है यू नो व्हाट आई मीन. बोलता है नो आई डू नॉट नो व्हाट आई मीन. व्हाट यू मीन? तुम जब किसी को अलाउ करते हो तो तुम अपने आप को एक अथॉरिटी पोजीशन पे रखते हो, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रखते हो. सेम गोज विद द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड मी. तो आप उनमें से एक बन जाओ दैट we always works in team and in leadership or anything for that matter rather than I. अगर थोड़ा सा ब्लेम खुद पे ले लेने से काम अच्छी बन जा रही है तो क्या प्रॉब्लम है. लोगों को भी पता है गलती किसकी है. But you being a leader, you have to be humble, you have to be modest and you cannot say भाई मेरी वजह से ये हुआ, आप बोल ही नहीं सकते. So I believe आपको we consider करना चाहिए and उसके बाद बताना चाहिए that we all are awesome. Now we have this problem in front of us and ये सारे options है जिससे हम leverage कर सकते हैं. So either opt for our problem or opt for leverage. इस तरह से जब आप बात करोगे ना, this is the way I talk to my trainees and basically to my team members. I have a very small team जो अलग अलग cities में रहते हैं, but जब हमारी meeting होती है तो I never tell them यार ये क्या कचरा कर दिया. तो I always come up with यार, जैसे for instance for my LinkedIn. So it's not me who's handling the whole LinkedIn. It's me and my team who are doing that. तो at that point in time मैं ये नहीं बोलती कि यार क्या कर दिया, पोस्ट नहीं किया टाइम पे, ये क्या स्ट्रैटेजी. मैं बोला यार I believe we need to work on certain other strategies. I know मेरी तरफ से डिले हो रहा है, वीडियोस नहीं दे पा रही टाइम पे, या मे बी मैंने ही तुम्हें इतना इनपुट्स नहीं दिया. और I take the blame on myself. होती है, मेरी भी गलती होती है कई बार, ऐसा नहीं कि खाली उनकी गलती होती है. So you have to play along. You cannot be an extremist. It's either your problem, it's my way or highway. That shouldn't be the case. So I think that's the answer for dealing. One leader deals with other leader in the same way because consider them as a king. एक king एक राजा दूसरे राजा से कैसे बात करता है? As simple as that. वैसे ही आपको बात करनी. वैसी बात करनी. Very very nicely said. Thank you so much for that. I hope that
this message reaches to the person that I'm intent for. I really hope वो लोग सुन के ना उसके बाद अप्लाई नहीं करते. That's the main trigger. That's नहीं तो that is a human tendency. I think we all have the books but we fail to read them. Yeah. So वो बोलते हैं ना घोड़े को घास तक लेकर जाओ, खाना नहीं खाना है वो उसके ऊपर. और मजनू भाई वाला घोड़ा नहीं. लड़के की शराफत अच्छे से पेट नहीं कर पाया. ले लिया. अरे बाप रे. Okay. So okay, so this was one that I had when one leader was talking to another leader, well, again, and to them they're screwed. Next thing I want to talk about a difficult conversation that they're having, right? I think corporates में usually difficult conversation happens when I feel कि एक incentive अगर कम आया, ज़्यादा आया, True. कुछ गलत हुआ. So now let's say a person A is got less incentive than what they have expected. How can that person go and talk to the leader saying that कि भाई क्या है? उसके दिल में तो यही चल रहा है कि कर रहा है ये. बट वो बोल नहीं सकता ना वो. But respected sir. हाँ but वो मन में जो आ रहा है respected sir के अंदर वो respect is something else. But so when something happens, how can a person go who's at an employee level go and talk to the management level to speak about where the commission has come less or कि गोची है? How do you fix it? Now I'll not only talk about from the employee point of view because it's not the one-way thing, it's a two-way thing. So I'll talk from both the aspects, employer and employee. I'll give you one best example. अपने घर पे maids, right? Most difficult, the most difficult conversation you can have. ठीक है? House helps. House helps. नहीं तो यहाँ पे मुझे लोग थप्पड़ मारेंगे कि कैसे बोल दिया. Controversy में आ जाओगे. So house helps जो होते हैं obviously they make our lives easier and tough as well. जब बोल के घोस्ट कर देते हैं, ठीक बोलते ही नहीं है चले जाते हैं. But the thing what I'm trying to convey here is कि आप उनको पुराने कपड़े हैं या मे भी कुछ कभी नए कपड़े भी खरीद के दे देते हैं, सामान दे देते हैं, अच्छी अच्छी चीजें दे देते हैं, फिर भी उनका मुंह बना रहता है. और आप बोलते हैं इतना देने के बाद भी इनको ना कोई कदर नहीं है, इनको तो रिस्पेक्ट ही नहीं है. ठीक है, इनको तो कदर ही नहीं होती. इतनी सारी चीजें मैंने दी बट इनको तो बस पैसा दिखता है. दिखता तो आपको भी पैसा ही है. अब टेल मी, प्रमोशंस चाहिए, इंसेंटिव्स चाहिए, बट उसके बदले सोन पापड़ी का डब्बा दे दिया अगर एम्प्लॉयर ने, या ज्यादा से ज्यादा एक किट दे दिया, कुछ अच्छा किट दे दिया. फॉर इंस्टेंस आपके बॉडी एसेंशियल्स दे दिए, फॉर इंस्टेंस बॉडी शॉप के आपके फेवरेट ब्रांड के दे दिए. स्टिल यू विल नॉट बी दैट हैप्पी क्योंकि मनी नहीं है ना. मनी इज द ड्राइविंग फोर्स. मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज वन थिंग. सो whensoever you are in that position, first consider yourself, what you're doing to your house help. See, I would not say it is karma, but it is karma. Right? आप जिससे दूसरों को ट्रीट करते हो ना, वैसे ही आपको भी ट्रीटमेंट मिलती है ना. How to handle it? I hope you got the point. I got the point, yes. So, how to handle it is basically, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, promotions के लिए जैसे हम पूछते हैं, you go. उसी वे में आप उनसे पूछिए कि I wanted to share something, I wanted to talk about something which really needs your attention, maybe. तो आपका जब भी टाइम है 5-10 minutes या 15 minutes आप मुझे दे दो. उसके बाद आप बताओ कि पहले उनसे पूछो कि is there any area of improvement for me? Is there anything that I've done wrong or maybe I need improvement or enhancement in? अगर कुछ बोलते हैं तो चुप रह जाओ. उसके बाद तुम्हारा इंसेंटिव कटा है तो कटा. क्यों? क्योंकि तुम्हारे में गलती थी which you have to gauge. Now do not let ego or any insecurities come into the picture. ठीक है? लेकिन if they say no, you have been brilliant, you have been doing a great job, you're like, then show them the slip. कि I think I would really like if you can elaborate on this. I really did not understand that. I missed the calculation. And don't be sarcastic. People get sarcastic. अब वो sarcasm आ जाता है हमारे इसमें. Naturally, हाँ. जरा बताना. कैलकुलेशन नहीं मिल रहा प्रॉब्लम. नहीं, डराना नहीं है आपको किसी को भी. सो अगर वो कह रहा है कि यू हैव बीन फैंटास्टिक, यू हैव बीन डूइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज फाइन, तो काय को नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? शालू को ज्यादा क्यों दिया? मुझे क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे मेकअप लगाने नहीं आता. Just giving you an example, because you know there are things that depend on that as well, which I have faced in the companies, right? तो
आप जस्टिफाई करवाइए, बिकॉज आई डोंट फील दिस इज जस्टिफाइड. आई थिंक an elaboration or a proper breakdown would be really good for my satisfaction. Take everything on you. Take everything on yourself. And जब उनके जुबान फड़फड़ाने लगे, okay, when they start to fumble for that matter, ठीक है, at that point in time you must pitch your idea of getting the incentives. कि I've been really loyal to this company, I put my heart and soul, and you know that my stats have been good, my history records have been really nice, okay, very impressive, and it is really disappointing, which sometime or the other might affect the productivity, because I was all hopeful about that. कुछ भी आप अपने टर्म्स में बोलो, लेकिन गुस्सा मत दिखाओ, क्योंकि मे बी शायद हमेशा कंपनी रॉन्ग नहीं रहती है, मे बी आपने भी अच्छे काम नहीं किए हैं, ठीक है, मे बी यू डोंट डिजर्व इट. But you have to work on yourself. Maybe you have to improve yourself. You have to improvise on your skills. तो ये दो तरीके हैं. अगर गलतियां दिखा रहे हैं वो लोग, मान जाओ, मत पूछो. लेकिन अगर तारीफ कर दिया, कुछ गलती नहीं दिखाई, तब तो आप क्वेश्चन. दिखा दो. हाँ, तब क्वेश्चन. अंडरस्टूड. बट लोग क्या करते हैं, पहले जाके क्यों नहीं दिया. हाँ, सबको सीधा मेरी सीधा memory यही है. हाँ, हाँ, एंगर tone में भी यही जाके है. बोले कि ये क्या है. हाँ, अरे मैनेजर होगा अपने घर का, रुक जा, आज इसको दिखाता हूँ. सो दैट इज द टोन. और वो टोन मतलब ठीक है, वो टोन में भी आप कंट्रोल कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है गुस्सा इंसान कहाँ दिखाता है, जहाँ पे गुस्सा सहने वाला होता है. जहाँ पे उनके गुस्सा नहीं चलता, वो कहाँ दिखाते हैं गुस्सा. ठीक है, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम उतना समझ जाता है, बट आप अपने अग्रेशन को ना पैसिफाई मत करो इतना ज्यादा. ठीक है, लॉजिकली सोचो. Logical thinking always works. Right. Okay. So when you're approaching any kind of difficult conversation, so be calm. Be really calm. Be patient. Yeah. And speak smartly. Yeah. Because अगर आप एंगर से काम लोगे तो जो मिल भी सकता है वो भी शायद चला जाएगा. ना इसके अंदर है ना, आपने जो एक बात बताई कि दो वे है, सही है. एक that you ask them कि okay what is kind of a mistake that I've done. That's one. Which understandable है कि okay they've said कि ये mistakes आपने किए, you and if it feels कि हाँ आपने की है और आप agree कर लो. Number one, जो सबसे बड़ा difficult challenge है, जो हम agree नहीं करते. दूसरा कि अगर उन्होंने बोला सब अच्छा है, then you should. अच्छा वाला तो पार्ट सही है. जब अगर तुमने ऐसा कुछ किया नहीं है जो वो बता रहे हैं, then what happens there? What if you do not agree कि this is not what I have done? Then how do you take this conversation ahead? So basically, I believe वहाँ पे आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर आप 2-3 लोगों का वैलिडेशन तो नहीं बोलूंगी, फीडबैक ले लो. मे बी आपके जो कोर टीम मेंबर्स हैं, कॉलीग्स हैं, वो आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे. आप देखिए, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम अपनी गलतियां ना सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते. ठीक है, मे बी कभी कभी लोग होते हैं उतने रिजिड और उतने कनिंग जो आपको इंसेंटिव्स नहीं देना चाहते. करेक्ट. सो दैट्स दिस वन थिंग दैट कीप वर्किंग एंड कीप लुकिंग फॉर ऑप्शंस. ओके, इफ यू थिंक दैट यू आर जेन्युइन, जैसे हमें भी लगता है यार, I'll tell you honestly that I've been sharing this with you. I feel I put in a lot of efforts. I would not say I have great knowledge या in-depth knowledge, but I have decent knowledge, जिससे मेरा जो potential है वो काफी ज्यादा है. But when I see people who do not have potential and have been bragging about themselves left, right, and center there on the social media and earning millions of followers and money, at that point in time I feel very bad. Not because I'm jealous, I'm never jealous of anyone, I don't have the tendency, but I feel bad कि यार क्यों. Then what I do is I opt for another strategy, is working on my karma, working on my efforts, and maybe it's not my time. तो आपको क्या करना, आपको ऐसा लग रहा है कि जेन्युइनली उन्होंने जो कहा वो गलत है, मैंने वो किया था और ये गलती कर रहे हैं और लोग करते हैं. कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है और जो बहुत गंदी होती है. ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे मैं अभी हम लोग बैठे थे तो मैं बता रही थी ना आपको कि विदुर का एक एग्जाम्पल देती, जब हम नीचे बैठे थे तो द्रौपदी का जब चीरहरण होता है, राइट, एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो साइलेंट हो जाते हैं वो. नॉट बिकॉज ही लव्स कि वो अच्छा हो रहा है इस औरत के साथ, नो, इट्स नॉट दैट. ही नोज दैट अगर वो मुंह खोलेंगे तो पंगा हो सकता है. ठीक है, पंगा हो जाएगा, क्योंकि वो अगेंस्ट जाएंगे दुशासन के और दुर्योधन के. ठीक है, तो मुंह खोलेंगे तो वो होगा, बट उनके एक्सप्रेशन से दिख रहा था दैट इज नॉट हैप्पी. लेकिन वो मुंह खोलेंगे तो एक और चीज होगी,
कि डेफ ईयर्स चला जाएगा सबको, कोई नहीं सुनेगा उनकी बात. सो ही चोज साइलेंस, right? At that point in time, that's the exact example that I want to give to people is कि ठीक है, कभी होता है कि हमारी आंखों के सामने गलत हो रहा है, right? But at that point in time, you try to look for options कि मैं इसको और कैसे सुधार सकता हूँ. मे बी विदुर में तभी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो रोक पाए. ऐसा नहीं बोल रहा अभी यहाँ पे, शायद मे बी कुछ कमेंट्स में भी लोग लिख देंगे कि ऐसे थोड़ी है, गलत हो रहा था उन्हें करना चाहिए था. नहीं, कभी कभी सिचुएशन अलाउ नहीं करती है, या कभी कभी आपके अंदर की हिम्मत नहीं होती. यार उस टाइम तो लोग सत्य पे बहुत, धर्म पे बहुत चलते थे, प्रोमिसेस पे चलते थे. तो मैं नहीं खोल सकता क्योंकि धृतराष्ट्र मेरे राजा है, राइट? मैं उनके बेटे के लिए बोलूंगा तो नहीं. तो नॉट बिकॉज ही वाज अ बैड पर्सन, बिकॉज ही चोज साइलेंस एज हिज नकारात्मक. ठीक है, तो नकारात्मक दृष्टि थी उनकी. क्यों? मुझे नहीं पसंद आई, मैं इसे अग्री ही नहीं करता. ठीक है, सो यहाँ पे नकारात्मक इज नॉट इग्नोरेंस, इट्स साइलेंस बेसिकली. तो वहां पे भी हमें वही करना है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी इस कंपनी में वैल्यू नहीं हो रही है, मे बी ये मुझे बहुत ज्यादा ब्लडशेड करवा रहे हैं, राइट, एंड स्वेटशेड करवा रहे हैं, एट दैट पॉइंट इन टाइम आई बिलीव अब साइमल्टेनियसली अपने ऑप्शंस देखिए, अप्रोच करिए, वाउच करिए, एंड यहाँ पे भी वर्क करिए. जब अच्छा मिलेगा जस्ट हॉप ऑन. दैट्स दैट. Okay, so if you're not agreeing, it's better that rather than going and fighting, Yeah. because हो सकता है, like you said, it could be deaf ears. हाँ, So then you keep your options outside and see how it they'll works go out. deaf ears and might be they will try to demean you more कि अब next time से इसका इंसेंटिव ना हो, इसके लिए और खामियां हम लोग खामियां निकालते निकालो, रहेंगे. हाँ. क्योंकि that is the play, that is the bad play that That happens play, in हाँ, corporates and in corporates. everywhere out there. in the हाँ, world. that's true. That's That's not true. only But the not also corporates. that. I think one more thing that can happen हाँ. is that कि अगर आपने वो situation में मुंह खोला या गलत तरीके से कुछ Yes. बोल दिया, Yes. then what will happen? They might give you a negative feedback when it comes to hopping onto a different Reference, हाँ, work. गंदा reference मिल Reference सकता नहीं है. आएगा आपको, reference negative आ जाएगा, हाँ, या and that can maybe work difficult. या मे बी ऐसा भी हो कि आप तभी नहीं बोलते, आप चुप हो जाते. मे बी उनको भी रियलाइज हो कि ठीक है, यू आर वर्किंग एंड यू आर नॉट सेइंग. मे बी शायद कुछ परिवर्तन, हृदय परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, वो हो जाए, वो बाद में आपको इंसेंटिफाई करे. लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि खाली कम्युनिकेशन नहीं है, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. जैसे हम बोलते हैं कि भागवत गीता जो है वो एक जीने का सार है, जीने की पद्धति है जो हम बताते हैं. तो आपको कम्युनिकेशन पे ही खाली वर्क नहीं करना, आपको कम्युनिकेशन के एफर्मेशंस पे वर्क करना है, आपको अपनी जिंदगी के मैनिफेस्टेशन के लिए वर्क करना है. तब आप धीरे धीरे देखोगे कि चीजें कैसे अलाइन होंगी. तब मे बी या तो आपका एचआर ही बदल जाएगा जो बहुत नालायक था, या तो आपका एचआर सुधर जाएगा, ऐसा परिवर्तन आएगा उसमें, या कुछ तो ऐसा होगा कि you'll get the opportunity. So do not blame people. If something is happening to you, it is because of you and no one else. No one else. मेरे लाइफ में भी अगर फिलहाल कुछ चल रहा है अगर फॉर इंस्टेंस, तो मुझे पता है भले मैं किसी को भी ब्लेम करूं, पर वो कहीं ना कहीं मेरी गलती है या मेरा इनकंसिस्टेंसी या मेरे कम एफर्ट्स के कारण हो रहा है. As simple as that. So you enhance yourself, you improve yourself, and then you see the magic happening. It's all as simple as that. So, what you spoke about is so true, right? A holistic way of approaching is something that you really have to work across. Yeah. You used a word, manifestation, which I love. बस मैं सिखाता हूँ actually. But how? I mean, I don't get it, right? How you can use manifestation with communication? Like, how will that work? So जैसे हमने पहले बात की थी, many people have this, and I would not say many people, 98% of people have this problem of being underconfident. Okay, so the best thing that you can do is आप जो अपने affirmations लिखते हो ना, जैसे for instance I have this affirmation that I'm a money magnet, I love abundance, money comes to me effortlessly and abundantly, फलाना ढिकारा, whatsoever in any context that you need. तो जब आप communication के लिए बना रहे हो, तो आप आंखें बंद करो जब आप मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करते हो, और अपने आप को फुल्ली प्रेजेंट रखो उस स्टेट में वेयर इन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, विद अ वेरी सीनियर डेलीगेट फॉर दैट मैटर, और अ पर्सन इन द इंडस्ट्री, और मे बी समवन यू लुक अप टू दैट यू वांट टू टॉक टू, but you are unable to because maybe you do not have the contact, or maybe you lack communication skills. So at that point in time you can actually visualize yourself, and do not only visualize talking to the person, visualize yourself from the very beginning. You wake up, you brush your teeth, okay, you wear your favorite suit to the office, you wear your favorite perfume, you look the best that day, okay, you're glowing, your skin is shining, and maybe you got a cab on time, you reach there before time, and then you're going to the person, you are doing that handshake,
maybe the person knows you and he's very much warm, so maybe the person hugs you as well. Okay, then you crack open with a good joke. Okay, that's very relatable और वो दोनों mutual है, right? And then आप लोग बात करते हो, आप लोग normally बैठे, जैसे हम लोग बैठे, हम लोग बात कर रहे हैं, very आपका body language it's very open. Okay, so बहुत सारी चीजें, हंसी मजाक चल रही है, बात चल रहा है, so visualize it. Visualization technique always works. So when I do it for my people, for my trainees who are underconfident, I tell them take 5 to 6 breaths, because 3 breath में आजकल कुछ नहीं होता है, इतनी एंजाइटी लोगों की बढ़ चुकी है. Alright, so 5 deep breaths लो, 5 से 6, उसके बाद उनकी आंखें बंद करवाती हो and literally उनको narrate करती हूँ मैं सारी चीजें as a storyteller, right? But if you do not have someone कि जो आपको बोल सके, आपको विजुअलाइज करवा सके, तो आप खुद के स्टोरी टेलर बन जाओ और वहां पे प्रेजेंट रहो. यस, आई वुड ऑल्सो एड ऑन हियर दैट स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि यार है नहीं तो मानू कैसे, राइट? बट आप जब धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको खुशी मिलने लगेगी, राइट? तो आप वो मैनिफेस्टेशन करिए. मैनिफेस्टेशन क्यों काम करता है? द साइंटिफिक रीजन विच यू ऑलरेडी नो, दैट आवर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन द इनर वर्ल्ड एंड द आउटर वर्ल्ड. ब्रेन ओनली पिक्चर्स व्हाट यू फीड इट, राइट? तो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है. अगर मैंने इसे फीड किया है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मैं रो रही हूँ, मुझे ये नहीं हो रहा, लेट हो रहा है, वही सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी. देखिए, जिनके साथ बुरा होता है, आप देखिए उनके साथ बुरा होते ही रहता है, होते ही रहता है, होते ही रहता है, जो लोग बहुत क्रिब करते हैं. लेकिन आप अगर अपने ब्रेन को ये फीड करते हो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा स्किन बहुत अच्छा हो गया है, मैं बहुत अच्छा कमाने लगा हूँ, जैसे आप बोलते हो ना कि रियलिस्टिक गोल्स रखो, थोड़े मेजरेबल रखो. अभी अकाउंट में पैसा नहीं है, 1 करोड़ मत सोचो, एटलीस्ट 1 लाख सोचो. ओके, तो थोड़े मेजरेबल भी रखने चाहिए, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप. आप बच्चे हो तो सीधा निबंध राइटिंग नहीं करोगे, ABCD सीखोगे, एज सिंपल एज दैट. तो मैनिफेस्टेशन इस तरह से करना है, बट पूरा बिलीफ सिस्टम ऑन रख के हाई वाइब्रेशंस पे करना है, राइट? तो उससे क्या होता है, उससे आपके ब्रेन को अंडरस्टैंड करने लगता है, अच्छा मैं जो इसको खराब चीजें दे रहा था, ये नहीं दे रहा, मुझे ये देना है, अच्छा ये मांग रही है ये. I can give you n number of multiple examples, and I'm sure that it might have happened in your life also, because you're a coach, manifestation coach. तो ये चीजें काम करती हैं. जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो चीजें कैसी अलाइन हो गई. So basically कैसा वर्क करता है? So here is the bottle, here are 2 bottles. ऑलराइट, मुझे ये बॉटल नहीं चाहिए टेबल पे. मे बी मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये बॉटल नहीं चाहिए, लेकिन ये बॉटल हट ही नहीं रही, कोई हटा ही नहीं रहा है. मे बी यहाँ से भक्ति गुजरी, गलती से उनका हाथ लग गया और ये नीचे गिर गया, तो ये बॉटल जो है यहाँ से हट गया. एज सिंपल एज दैट. सो मैनिफेस्टेशन भी उसी तरह से काम करता है. तो आपको कम्युनिकेशन में इस तरह से करो कि आप कॉन्फिडेंटली खड़े, आपका पोस्चर अपराइट है, ओके, शोल्डर्स ब्रॉडन करके रखे हैं आपने, है ना, आप दिख अच्छे रहे हो, आपका कपड़े पे कोई क्रम्पल नहीं है, ठीक है, आपने शूज ऑन पॉइंट पहने हैं. एकदम डिसाइड करो स्पेसिफिक कपड़े, एक्सेसरी, जूते, घड़ी कौन सी पहनोगे, बैग कौन सी लोगे, एवरीथिंग, एंड किस तरह से बात करोगे. जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ ना, लिटरली इट्स वन ऑफ माई ड्रीम्स दैट आई एम टॉकिंग लाइक दिस. मुझे नहीं आता था बात करना, राइट? मैं सीधा बदतमीजी ही, कुछ ना कुछ गलती निकलता था मुंह से, ठीक है, तो पसंद नहीं करते थे मुझे, ऑनेस्टली पहले बता रही हूँ, ठीक है. तो आपको ये सारी चीजें करनी है. आई थिंक दैट वुड हेल्प यू मोर. एंड ऑब्वियसली स्टार्ट में आपको एफर्ट्स भी लगाने हैं. बैठ गए मैनिफेस्टेशन करके हो गया, तो लाला बन के नहीं बैठना, नहीं बैठना. आपको एफर्ट भी कर ही रहनी है. यूजुअली आई थिंक मैनिफेस्टेशंस यूजुअली फेल व्हेन पीपल आर जस्ट मैनिफेस्टिंग. बट मैनिफेस्टेशन का, मैं ना, व्हेन आई टीच मैनिफेस्टेशन, मैं उन्हें बताता हूँ मैनिफेस्टेशन का नंबर 1 रूल व्हिच 90% ऑफ द पीपल फेल. के बोलते अरे मैंने मैनिफेस्टेशन, एक्शन किया क्या? एक्शन, अच्छा एक्शन करना है? नहीं करना है भाई. खाना सोचो, अपने आप चल के आएगा आपके पास. Of course, action is very important factor. And what happens is that when many people they go and be like, के manifestation करना तो action क्यों करना? Because the fact is that कि अगर आप manifest कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से अल्लाह ताला आपको देंगे. It's about the fact that you will start opening up yourself to more opportunities, and when you speak about it, it starts to show you the ways कि अरे हाँ देख, वो एक रास्ता है, ये एक रास्ता है. जैसे आपने बताया कि अगर आप 1 लाख रुपए बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? You start seeing ways. हो सकता है this podcast for someone can be a manifestation. I'll tell you how. We're talking about what? Communication. Communication is what? Is a skill, right? It can be learned very easily.
right? Only thing you need is a good mentor, practice, and you need to ensure that you're Execution. consistently executing it. So if you do that correctly, I think being a communication coach can easily make you a good amount of money. True. Right? But again, what happens is that if somebody is watching this, but if they're not going to take action on it, कि आज अनामिका आई हुई है, अच्छा मैं इसका अकाउंट जाके देखता हूँ, ये कैसे बात करिए, can I have Anamika as my mentor? I can ask her to teach me how to be, how to communicate. That can be one way. Second way would be that, okay, I'm looking for a promotion. I'm looking to grow in my company. How can I do that? Well, you can do it by communication. And how you can do it? You can find yourself a mentor, learn the skill, up your game. Many people just wait for that and they fail. अरे मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, अरे मेरे को तो कुछ होता ही नहीं. That's very common. So that's one of the reasons I think most of the things fail, right? We spoke earlier about, so great communication on manifestation. I love the combination on it. We should do a webinar together on this. Pakka, है ना? for sure. So, earlier you spoke about email, right? I think I feel we live in a country where email भेजने के बाद मैसेज करना पड़ता है, email भेजा चेक कर लेना. That's so true. वो मैं भी करती हूँ. है ना? तो everyone does it. ऐसा अभी apparently what happens was, so when I first came here, I used to write emails, right? हो गया, बात हो गई, मैंने email भेज दिया. फिर है ना, भक्ति ने मुझे बताया कि अरे उसको बता दो दे कि ईमेल भेज दिया, चेक कर ले. मैंने ईमेल भेजा है, नोटिफिकेशन आएगा, चेक नहीं, यहाँ बताना पड़ता है. ईमेल भेजा है, चेक कर लो. एंड ये चीज है ना, बिलीव इट और नॉट, आई हैव वर्कड विद मेनी पीपल हु मेक crores of rupees. I'm not even talking about छोटे मोटे vendors. I'm talking about people who make multi-billions. And I had tried this. I have messaged, I have emailed, and I have waited. I didn't send a message. They had asked for something. They're like, can you please email me this particular invoice? Okay, done. This is what I replied. I sent the email within next 1 to 2 hours time. The next day, hi, could you please email it to me? Well, I have done it yesterday. Have you checked? Oh, okay. Good. Let me go and check. You should have done it yesterday. You should have done it yesterday. You asked it for me. तो गालियाँ पड़ेंगी. So, email is one of those things, right? Now, what happens is that email has 3 aspects of it when you send it. Number 1, the most powerful. Subject. The subject line, right? And then the second is how you address the person. Greetings of the day. Good morning, sir and madam. Good morning, sir or madam. Adha, Ardhanari. So, and then finally comes the part where, you are supposed to crux, be sending your thoughts across. And, we earlier spoke about grammar as well. There's a meme out there. God blast you. God blast you, yes. Blast you. I was sitting right on top of you. I don't remember that meme. वो इतना ज़्यादा उसमें लिख रखा था. So many messages. Like I couldn't control myself. मैं अकेली थी, इतना गिर के मैं हंसी हूँ ना. Like मैं अकेला क्यों हंसूँ, दोस्तों को भी नहीं तो मेरे पास भी आया हुआ ये तो emails, बहुत सारे emails ऐसा है. So how to write and curate the best email and how to ensure कि तुम्हारा grammar सही है, कुछ सही होना हो, grammar सही है. But important. So what do we do about that? हंस ले, पहले हंस ले. Sir, I need you. Sir, अरे वो पता एक और मीम चलाते हैं ये चीज के ऊपर. Sir, I need your. उसके आगे वर्ड ही भूल गए. नहीं एक और चीज हुआ था पता है. क्या? एक मैसेज आया था, ये बहुत मीम पे चलता है. कौन सा? व्हाट्सएप गया था एक दिन. सर आई एम प्रेग्नेंट. So I need vacation. Now you're gonna have to come and explain this to my wife. That is, so उसने clearly एक के बाद एक लिखा था, उसने एक साथ नहीं लिखा था. So basically, so email writing is one of my USPs, I would say. I am a trainer, but it's always 49-51. So the 51 is my written communication and 49 is my spoken communication.
ईमेल राइटिंग में सबसे पहले तो ऑब्वियसली ग्रामरली आप डाउनलोड करो. ऑलराइट, प्लीज ग्रामरली डाउनलोड करो. एंड द पीपल हु आर टेकिंग हेल्प ऑफ AI tools, yes, AI tools are brilliant, but I have observed ChatGPT doing grammatical errors. Really, is that so? Yeah, ChatGPT does. हमारे रंग में Okay. रंग गया वो भी. Yeah. वो बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है. Alright, तो रिसर्च स्ट्रॉन्ग नहीं है. So ChatGPT का रिसर्च भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. But I would not say it's a great tool because it helps me curate my content for that matter. But download Grammarly. And the second thing, try to learn by yourself. 12 tenses, just that. बहुत इजी है टेंसेस. जितने टेंसेस को हमने एट पार बना के रखा है, इतनी इनसिक्योरिटी बन रखी है कि यार ये तो बहुत. टेंसेस आर द बेस्ट पार्टनर्स. और बहुत सिंपल है. इफ यू डू नॉट नो टेंसेस, कम टू मी. मैं इतने लेमैन में आपको टेंसेस समझा सकती हूँ कि जिनको भी मैंने आज तक पढ़ाया है, whosoever, my trainee भी, I've taught them grammar. It's there inscribed totally. And it will be forever. So पहला है, आप एक अच्छा ऐप इंस्टॉल करो जो आपको ग्रामर करेक्ट कर दे. एंड ग्रामरली मुझे अभी तक बेस्ट पता है कि it does. I think that I don't know if anyone else is here. हाँ. सेकेंड इज सब्जेक्ट लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. So strong as in, I would not say long. People think long is strong. So subject line should be, for instance, आपको मुझे इनवाइट करना है पॉडकास्ट पे, राइट? तो you will not say subject line की जैसे पॉडकास्ट इनवाइट. नो, that shouldn't be the case. Yes, that would excite me obviously, but who's inviting me, right? So you can invite Kabir Wani channel podcast invite. Okay, so आपको अपना चैनल लिखना है, अपना इनवाइट लिखना है. Then understand कि who you are sending to. अगर पता है, जेंडर पता है किसी का, वेरी नाइस. फॉर्मल में we write dear. ठीक है, we do not write hello. People think that hello is formal and dear is informal, but that's not the case. Dear is formal and hello is informal and casual. Hi, hello, right? ठीक है, so that is there. So you have to understand कि किसको कर रहे हो आप मेल. और उसके बाद पे do not write dear Mr. Kabir. It is incorrect. You have to always address. Basically आप किसको एड्रेस कर रहे हो, मिस्टर, मिस. ओके, तो वो आपका डिपेंड करता है आपके सरनेम पे. हेलो मिस शुक्ला या डियर अनामिका. डियर मिस अनामिका नहीं, डियर मिस अनामिका शुक्ला लिखो पूरा. नो, नहीं तो डियर मिस अनामिका मैम. हाँ डियर या डियर अनामिका मैम जैसे, या डियर मैम. ठीक है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है. इफ यू डू नॉट नो हु यू आर talking to, or maybe who you are sending email to, so to the person concerned. To the person concerned. Okay. Okay. So it's to the person concerned or who it may concern. What would be? Either or would be right. Either ways would work. Okay. To whosoever it may concern, या to the person concerned, या अगर आपको उनका designation पता है, ठीक है, so dear this team. ठीक है, वो आप लिख सकते हो. बट ये भाई, ये dear sir / madam, ये भाई जेंडर बायस नहीं है, ये जेंडर पे एक सवाल है. हाँ. कि तुम जो भी हो, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ रहा है. हाँ, तुम आदमी हो औरत हो, मेरा काम करके दो. It's very selfish, although the purpose is not like that, the thought process is not like that, but वो literal way में वैसे ही जाता है. उसके बाद जैसे मैंने अपने पोस्ट पे भी डाला था कि 2 sentences में ना, first 2 sentences में आप क्लियर कर दो. greetings वीटिंग्स लिखते हो, that is important, but if you have a channel, if you have a flow of communication, हर बार मत लिखते रहो डियर ये, डियर वो, डियर ये. directly get to the point if वो लूप में है. ठीक है, and first 2 sentence में आप अपने प्रॉब्लम को बता दो. किसी के पास टाइम नहीं, मैं खुद नहीं पढ़ती ईमेल्स ज्यादा. ऊपर से देखते हो, सब्जेक्ट लाइन ठीक लगा नहीं लगा वो भी जाओ हार्ड. कितना भी काम का हो, चाहे वो मेरे ही काम का क्यों ना हो, जहाँ मुझे पैसे आए, आई डू नॉट कंसिडर इट, राइट? बिकॉज व्हाट पीपल थिंक इज, इफ आई एम गिविंग द पर्सन मनी, if I'm giving the person job, everything else can be neglected. No. If you're not professional, you are neglected and you should be neglected because you do not deserve to work there. As simple as that. क्योंकि आप में वो स्किल ही नहीं है, राइट? एक लाला भी है जो बहुत ज्यादा कमा लेता है बैठे बैठे मिठाई की शॉप में, बट अगर वही उसको बात करने का तरीका नहीं, उसको बाहर लेके जाएंगे, कॉर्पोरेट में लेके जाएंगे, कोई उसको नहीं पूछेगा कितना भी पैसा हो तुम्हारे पास, बिकॉज तुम्हारे पास स्किल ही नहीं है बात करने. ठीक है, वो होता है. उसके बाद ईमेल्स में स्लैंग्स मत यूज करो,
इनफैक्ट ईमेल्स में वी डू नॉट इवन यूज एब्रीवेशंस, ठीक है? हम जो कॉन्ट्रैक्शंस लिखते हैं, डिड नॉट का डिडंट, डज नॉट का डजंट, हैव नॉट का हैवंट, नो. फॉर्मल राइटिंग्स में यू ओनली एंड ओनली हैव टू राइट द फुल फॉर्म्स, हैव नॉट, डिड नॉट, पूरा लिखो. इट्स नॉट कंसिडर्ड फॉर्मल अगर आप पूरा नहीं लिखते हो. Okay. And one more thing, this beautiful thing that I've done in my email writing is I send it generally to the brands or maybe to my trainees. So obviously when you're in corporates, you write warm regards, thanks, well, जो भी है आपका, much appreciated. I always go for much grateful. Much grateful. I always write much grateful. Why? Because I am not defying any set format for the email writing, but this is just an addition wherein I believe much grateful हर के साथ जाएगा. Correct. और वो informal भी नहीं लगता. क्या हो गया है ना, हम अपने आप को बहुत अंग्रेज बना लिए हैं, लेकिन अगर अंग्रेज बना रहे हैं तो वो ग्रैटिट्यूड भी डालो उसमें. तो आई थिंक अगर मैंने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स मांगा है, आप कितना भी वो ईमेल का जो लाइन होगा या पर्पस होगा, मे बी शायद वो कितना भी बहुत बड़ा ना हो या बड़ा हो फॉर दैट मैटर, जो सामने वाले को अच्छा ना लगे, लेकिन आप जब नीचे मच ग्रेटफुल लिख देते हो ना, वो थोड़ा काम ना हो ही जाता है. ठीक है? Yeah, much grateful. I always write much grateful in Much mine. grateful. Okay. So keep it very crisp. Do not use slangs. Okay, give it to me. No, I would appreciate it if you could send me the report by 2 p.m. or by EOD basically. ओके, बनो पॉलिश्ड लैंग्वेज है. यहाँ पे थोड़ा फिल्टर की जरूरत है, यहाँ पे मे बी आपको थोड़ा प्रिटेंशियस होने की जरूरत है, क्योंकि वो रिटन कम्युनिकेशन है. दे हैव द फैक्ट्स क्लियर, दे हैव प्रूफ. सो अंडरस्टैंड दैट. People have proofs, they'll screw you. They do not have it, you are happy-go-lucky. Happy-go-lucky, okay. So this is a perfect format for your email writing. It's a perfect format. Great. You know how you said get to the line, right? If you have to write a draft, email, which is a big email, right? How do you want to start the middle, beginning? So the start would be, आप जब greet करते हो, वो आपका purpose लिखो. I'm writing this email in regards to whatsoever. बीच में थोड़ा explain करो कि पर्पस क्या है, पर्पस को थोड़ा इलैबोरेट करो कि सिचुएशन एग्जैक्टली क्या चल रही है, एंड कंक्लूजन में आपका आउटपुट क्या चाहिए. ओके, सो बेसिकली हाउ वी डू इट इज प्रॉब्लम, देन आपका इलैबोरेशन करना, एंड देन आपका आउटकम. प्रॉब्लम, इलैबोरेट, आउटकम. Okay. एज सिंपल एज प्रॉब्लम, सिचुएशन, आउटकम भी बोल सकते हो. Okay. इसके लिए मैंने कोई वर्ड नहीं रखा है, बट इस फॉर्मेट में जो कि आप कर सकते हैं. Okay, fair. And how about so usually many people, how you said, much grateful. So regards and thanks. So would regard and thanks should be together? Regards, no, I don't think so. है ना, because many people regards and thanks. I feel that मैंने इसमें कभी इतना जोर नहीं दिया है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लेकिन आई थिंक दोनों को अलग अलग सेपरेटली लिखना चाहिए. आई बिलीव रिगार्ड्स है कि मेरा रिगार्ड्स पहुंचाना, ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट. एंड थैंक्स क्या, मेरा रिगार्ड भी पहुंचाना है, थैंक यू. अरे किस चीज का थैंक यू? राइट. ठीक है, ज्यादा ओवरली पोलाइट भी नहीं होना है कि वो फेक ही लगने लगे. सो रिगार्ड्स इज ओके, वार्म रिगार्ड्स इज फाइन, थैंक यू इज आल्सो फाइन. Okay. बट मच ग्रेटफुल इज तो वंडरफुल. That's it. Much grateful. I think that's good. I think I'm gonna steal that. So thank you so much for that. I think it's a perfect no way problem. to write. GPay number तो है आपके पास. Yes, absolutely. Oh God. Cool. I think on communication we were supposed to speak, but we spoke so much more than communication. You know, boils down to one thing. Boils down to one. And I'm so glad that we could have this conversation. And thank you for coming to the podcast today and sharing your beautiful knowledge with us. And for our audience, I hope that you have enjoyed today's podcast, where we spoke about so much more than just communication, confidence, self-love, self-talk, how to build that confidence, how to manifest this confidence, how to be a holistic approach. So many more other things that was part of this one beautiful package that we have brought together. Well, that I hope that you have enjoyed this, which I know you have. And what I want you to do is make sure that share this podcast with your friends and family. अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा है podcast, something like that, make sure you go ahead and check out our Kabir Wani clips, because इसमें से जो बहुत अच्छे clips है, because while I was talking to her, I'm gonna tell this, that how to write an efficient email
इसके ऊपर मैं एक क्लिप डेफिनेटली निकालूंगा. You should definitely go and watch it on our Clips channel, which will really help you out as well. Share that with your friends and family, and I'll see you till next time.